जी सर। Okay, Jarian, Sir. you go from asterisk, just we install, or just you show this zip.conf, what you configured GMCST. That I will show. But are they really want this Asterix to be installed? I mean, Linux and installation and then Asterix installation. One minute. सर लिनक्स इंस्टॉल करना तो Sir, सिखा good morning, दिया है, sir. बट ये एस्टिक Sir, good morning, sir. बाकी Yes, sir. Okay. Charya, actually we don't know, we are in the class, sir, this VoIP class. Sir, shall I come, sir? Morning I took, sir. गुड। चलिए, तो ऐसा करते हैं कि आपने अगर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल कर लिया है अपने सिस्टम पे, और अगर आपको एस्ट्रिक्स उस पे अब इंस्टॉल करनी है, Sir, so morning we'll I show took you my class, sir. that Now that will show just you. for helping, I am in the class, sir. I will come, sir, if any work is there. Sir. When is there, sir? No, sir. Sir, 1 hour I am free, sir. This 1 hour I can take care, sir. Okay, sir. Okay. Thank you. Application layer. राइट। सो अगर आपने ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना सीख लिया है, तो फर्स्ट यू इंस्टॉल द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर वर्चुअल मशीन, and then after installation of this Linux onto your machine, you'll be able to see this is the desktop for your Linux Debian, and onto the top you can see the date and the the time and the hours. And here there is another icon called as activity, and you can be finding so many menus available here. We have to open a terminal to to interact with our server, because the server has installed in our system and it is working on CLI commands. It is not a GUI version, so we have to open a terminal command terminal for executing the commands from it. So we need one terminal for it. And so find out the terminal in the search box, and when the terminal is open, you'll be able to see this is the terminal window for my server. And now I will access the server through this window. So first of all, we have to log in into the server by my credentials. So I have given the password reset, and now I'm in the admin mode. Okay, so just go to the directory where this Asterix has to be installed. So I will be installing this in my etc folder, and this in this etc folder we can give the command called apt-get install asterisk. Good. So yeah, sorry, get I'm not getting G typed over here. Get apt-get. So this is the command to execute installation of Asterix on your Linux Debian. Okay. आपको Asterix कहीं से डाउनलोड नहीं करना है. The system itself will download and install it in your system. If it is not installed, it will get installed, and if it is installed already, then it will be the reply. Okay, so I have already installed Asterix in my laptop in this virtual machine. So it is already installed. So it is saying that it is already installed with the new version of 13.14 version of Asterix. So no need to install it again. But in the initial installation, when you're first time installing the Asterix in your system, it will be this command can install Asterix on your system. ठीक है, आपको ध्यान में आ गया कि Linux ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करने के बाद आपको पहले यहाँ पे cd etc में जाना है. Go to this etc directory, and in this etc directory you can execute this command apt-get install Asterix, and Asterix will get installed on your virtual machine. After the installation, you can verify whether I am connected with the Asterix or not. Then you can type asterisk, that is this directory for Asterix, and if you are connected in Asterix, then you will be finding that you are in Asterix directory now. In this Asterix directory, we'll find various configuration files available with it. So just type ls and you will find the list of the configuration files which are available in your
asterisk folder. So in this asterisk folder, there are various configuration files. All files are .cunf files only. Okay, you can see these are all .cunf files available. The primary files which we need for our purpose are SIP .cunf file, because we are going to use SIP protocol for our users. There are various other protocols connected in this asterisk. They may be MGCP protocol, that can be H323 protocol, it can be SCCP protocol, that is Skinny protocol, or it can be any other protocol which is supported. IX protocol also is there. So all these protocols, we purposely are selecting SIP protocol for our purpose. That's why we are going to create accounts in sip.conf. Good, it is understood कि हम sip.conf क्यों यूज करना चाहते हैं, because we are going to use SIP protocol for our purpose. Good. So for executing this SIP, we will see how to configure the account in that. Okay. Another file which we need is a extension.conf. This extension.conf file is a dial plan file. That means in any of the telephony systems, we need a dial plan. That means a telephone with 0 to 9 digits on the keypad should be pressed for some combination of digits to achieve something. That means I want to make a call from one point to another, from one telephone to another, I need some dial number. I want to access conference, I need dial number. I want to access my voicemail, I need a dial number. That means for anything to achieve from that server, from that phone, I need to dial something. So in that connection, we are going to use a file called extensions.conf for creating a dial plan for everything. ये डायल प्लान फाइल जो है बहुत ही क्रूशियल फाइल है किसी भी सिस्टम के लिए, जहां पर भी कोई टेलीफोनिक सिस्टम काम करता है वहां पे डायल प्लान इज ए क्रूशियल प्लान. वहां पे आपको 0 to 9 डिजिट का प्लानिंग करना है, व्हाट डिजिट, हाउ, वेयर एंड हाउ टू डायल देन, है ना. तो मतलब आपको जनरली डायल प्लान का मतलब होता है कि क्या डायल करें और कहां पर डायल करें और उसको कैसे डायल करें. These three factors you have to consider while planning the dial plan: how to dial, what to dial, and where to dial. तो ये दो प्राइमरी फाइल्स हैं जो आपको हमेशा लगेंगी और इसको आपको करना है. दैट मीन्स यू हैव टू क्रिएट द अकाउंट इन SIP.conf फाइल एंड यू हैव टू क्रिएट ए डायल प्लान इन द extensions.conf फाइल. तो चलिए इन दो फाइल की मदद से हम पहले तो हमारे सिस्टम में अकाउंट क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ उनके डायल प्लान को भी क्रिएट कर लेते हैं. So all are getting this thing. अभी आप किसी को कुछ पूछना है इसमें, आप चाहे तो पूछ सकते हैं इन बिटवीन. अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, कुछ पूछना है, तो इन बिटवीन ऑल्सो यू कैन इंटरप्ट एंड यू कैन आस्क. गुड. तो चलिए, तो सबसे पहले काम करते हैं. S6.conf फाइल में हम ऑलरेडी आ चुके हैं. यहाँ पे S6 डॉट में है, S6 फाइल में है, और अब हमें SIP.conf फाइल की मदद से अकाउंट क्रिएट करने हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि SIP.conf फाइल को ओपन करना है. ओपन करने के लिए हमारे पास में एक एडिटर होता है जिसका नाम है नैनो. ओके, नैनो, नैनो. और इसमें हमें वो फाइल ओपन करनी है जिसका नाम है sip.conf. राइट. सो नैनो sip.conf फाइल में जाकर इस कमांड इसको एंटर कर दीजिए एंड नाउ यू आर कनेक्टेड. You are opening this S6.conf file which is a text based file, and इस text based file में आपको जो कॉन्फ़िगरेशन बनाने हैं उसके एक्सप्लेनेशन पार्ट इसमें लिखे हुए हैं. तो आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे की तरफ तो आप देख पाएंगे कि इट इज एग्जांपल फाइल फॉर S6 एंड इट विल एक्सप्लेन यू द कंटेंट ऑफ दिस sip.conf फाइल. तो मिनिमम क्या क्या कंटेंट आपको इसके अंदर बनाने होते हैं, दैट वी विल सी नाउ व्हाइल क्रिएटिंग ए अकाउंट फॉर ए यूजर. राइट. तो चलिए चलते हैं. अब हम नीचे की तरफ जाते हैं, थोड़ा फास्ट स्क्रॉलिंग कर लेते हैं. तो आपके कीबोर्ड पर एक पेज डाउन बटन होती है. इस पेज डाउन बटन से आप एक एक पेज डाउन होते होते नीचे की तरफ आ सकते हैं एंड फास्ट स्क्रॉलिंग करते हुए आप नीचे की तरफ आ जाएं एंड वेयर द डॉक्यूमेंट इज एंडिंग, ये आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे एंड हो जाता है. So this is the end of the document. Nothing has to be edited on this page except the creation of a new account. अभी यहाँ पे मैंने एक अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है. अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अकाउंट का नाम लिखना है. अकाउंट नाम लिखने के लिए आप एक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो भी न्यूमेरिक या अल्फाबेट्स लिखेंगे वो इस व्यक्ति का या यूजर का नेम होगा. ओके, सो दैट स्क्वायर ब्रैकेट कंटेन्स द नेम ऑफ द यूजर which we have to register onto a phone.
जो आप फोन इस्तेमाल करेंगे आईपी फोन, उस फोन पर ये अकाउंट नेम आपको लेना है। आई एम क्रिएटिंग अकाउंट फॉर माई जीएम, एंड जीएम के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है एक स्क्वायर ब्रैकेट में जीएम का नाम। उसके बाद में जो मिनिमम क्रेडेंशियल्स आपको इस अकाउंट के लिए लिखने हैं वो ये 6 लाइनें हैं, ठीक है, जिसमें पहली लाइन है टाइप इक्वल टू फ्रेंड। ये लाइनें आपको सीक्वेंस बदल सकते हैं, इट नीड नॉट बी दैट टाइप के बाद में होस्ट आए, होस्ट के बाद ही सीक्रेट आए, सीक्रेट के बाद ही कॉन्टेक्स्ट आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट दीज 6 लाइन्स आर द मिनिमम लाइन्स विच आर नीडेड टू क्रिएट एन अकाउंट इन दी सर्वर। गुड। तो टाइप इक्वल टू फ्रेंड का मतलब होता है ब्रदर the account GM can make a outgoing call and as well as it can receive the incoming call. So type equal to friend means both way calling, incoming and outgoing. Host equal to we have to keep dynamic. डायनामिक इसलिए क्योंकि हम इस फोन को किसी भी समय किसी भी नेटवर्क में स्थापित कर सकते हैं। वी कैन take this phone and connect it to any LAN or any network, IP network, where this phone can be hosted by the IP address obtained by in the DHCP format from the network. तो host equal to dynamic रखना है। स्टैटिक रखने से फोन एक ही जगह पे फिक्स हो जाता है, इसलिए हम स्टैटिक IP एड्रेस यूज नहीं करते हैं। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फोन को फिर एक ही जगह फिक्स करना पड़ेगा। होस्टिंग मीन्स at that point where the phone is getting on, who is going to host that phone from that particular IP address. तो host equal to dynamic रख देते हैं। Secret is nothing but your password. तो हमें एक पासवर्ड प्रोवाइड करना होता है। That password can be alphabets or numerics, anything and any length. इसकी कोई length नहीं होती है। You can use any number of digits or characters onto it. And I am using ABCDE. Okay. And if I want, I can see. You can change it. So I'm using ABCDEF just for the consideration. Context equal to एक name आपको देना होता है. That means in this server the users are created with their context name. That means which particular user in that particular context only can be found. By default we can keep all the users in the same context, that means in one classroom. But if at all somebody wants that they should be using different contexts for their users, they can use sales context or marketing call context or any other group name. This is nothing but it is a group name, so that we can separate one group from another. जैसे कि अगर हम बोले कि भाई 2 इंटरकॉम एक्सचेंज बनाने हैं, तो एक इंटरकॉम है जीएम इंटरकॉम, एक है इंटरकॉम डीआरएम इंटरकॉम। तो अगर आप चाहते हैं कि जीएम इंटरकॉम के जो यूजर्स हैं वो सिर्फ उसी एक्सचेंज में रहें, तो आप यहाँ पर सारे जो अकाउंट बनाएंगे उसमें इसकी कॉन्टेक्स्ट का नाम लिख देंगे जीएम, ताकि वो आप ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट में जीएम कॉन्टेक्स्ट में सभी लोग मौजूद हैं। दूसरी जो कॉन्टेक्स्ट होगी उसका नाम आप डीआरएम अगर रख देते हैं, तो द यूजर्स इन डीआरएम कॉन्टेक्स्ट विल बी फाउंड इन द डीआरएम ग्रुप। तो 2 अलग अलग ग्रुप को आप फिर आपस में कॉलिंग करने के लिए इनेबल कर सकते हैं कि जीएम इंटरकॉम कैन कॉल टू डीआरएम इंटरकॉम, और मे बी डीआरएम इंटरकॉम कैन कॉल टू GM intercom, or maybe they may not call each other, but they can be calling in their separate groups. GM के ग्रुप में अपने लोग काम करेंगे, DRM ग्रुप में अपने ही लोग काम करेंगे. Yeah, just like tenant. Yeah, somebody has told that okay, it is just like a tenant. So you are making a tenants into our server. So my context name indicates that it is a tenant group name. TLAB is nothing but it is a group of a tenant, and all the users in that particular tenant group TLAB will be available for their calling. Good, very nice. Qualify equal to yes indicates that the user has to be qualified every time, every interval of time for the availability. मतलब वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये देखने के लिए हम लोग इसको क्वालिफाई इक्वल टू यस अगर कर देते हैं, तो डिफॉल्ट टाइम जो भी उसका है 200 मिलीसेकंड या 200 सेकंड्स, उस में वो ये इसको जो है हमारे अकाउंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन को इंडिकेट करके बताते रहता है. तो दिस इज अ क्वालिफाइड टाइम. इट डजंट हैव मच significance with respect to the call connection or any other options available for GM for that account. Okay. Insecure equal to invite का मतलब होता है कि if we have two same names coming in the same server, like suppose GM South Central Railway wants to call to GM Central Railway. Now both account names are same. When they come into the server, in the same server,
they will be finding that the two GM's account cannot be in the same server and cannot connect a call. So for making them to that who is hosted by which particular server, then we indicate that GM is hosted by server 1 and another GM hosted by server 2 are going to communicate now. So InSecure equal to invite means with respect to the name, they will also see that who is going to host GM, the account GM. So account GM hosted by server 1 and GM account hosted by server 2 now will be connected together because they both are hosted by two different servers or maybe two different locations. Okay. So in this way, we can make a call between two same name accounts with their different host names. ठीक है. तो GM अकाउंट हमने यहाँ पे बना दिया. तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि GM अकाउंट को ब्रैकेट में लिखें, टाइप होस्ट सीक्रेट कॉन्टेक्ट क्वालिफाई और इनसिक्योर की जो लाइनें हैं इसको आप लिख दें, एक अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है. सो जस्ट मिनिमम 7 लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग. आई हैव क्रिएटेड GM अकाउंट, आई हैव क्रिएटेड CST अकाउंट ऑल्सो. तो GM और CST ये दोनों अकाउंट यहाँ पे बने हुए हैं. बाकी के अकाउंट बने हैं, मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस बाद में बताऊंगा जब हम लोग मेश ट्रंकिंग या सर्वर टू सर्वर जब कॉलिंग करेंगे उस समय में ये अकाउंट काम में आएंगे. तो फिलहाल हमारे पास दो यूजर हैं, GM और CST. तो इन अकाउंट को लिखने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, इन लाइनों को सेव करना है. जो भी लाइनें आप यहाँ पे लिख देते हैं उन लाइनों को आपको यहाँ पे पहले सेव करना पड़ता है. सेव करने के लिए आपको करनी है राइट आउट. तो राइट आउट ऑप्शन से आप पहले तो लिखी गई लाइनों को सेव करेंगे तो कंट्रोल बटन दबाएं, साथ ही साथ ओ दबाएं और ये लाइन यहाँ पे आपको लिखने के लिए परमिशन मांगेगा, वेदर टू राइट द लाइन इन द सेम फाइल और मे बी विद डिफरेंट नेम ऑफ फाइल. आपको फाइल नेम चेंज नहीं करने हैं, आपको सेम फाइल नेम यूज करना है जो आपने फाइल ओपन की थी sip.conf, जो कि आप टॉप में देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे कर्सर से, और इसी sip.conf फाइल में इसको यहाँ पे सेव करना है. तो जस्ट एंटर विदाउट चेंजिंग द नेम. ओके, अब ये लाइनें लिखी जा चुकी हैं. यहाँ से हम बाहर आ सकते हैं. बाहर आने के लिए हमें कंट्रोल X दबाना है. तो कंट्रोल बटन दबाएं, X भी दबाएं साथ में और एग्जिट कर जाएं. Now you have come back to the same location where you went inside, made the configuration and also you have exited from that and now you have come back. इसके साथ साथ अब हमें क्या करनी है, अकाउंट तो रेडी हो गए हैं. Now we want to create a dial plan for this. So the same nano option has to be utilized. तो nano option में जाएं और यहाँ पे फाइल का नाम टाइप करेंगे हम extensions.conf और इस extensions.conf फाइल में एंटर करने पर यहाँ पर भी आपको एक एग्जाम्पल फाइल दिखेगी. और जहाँ तक सारे जो हमारे डायल प्लान होते हैं वर्ल्ड में कहीं पर भी चल रहे हों, जैसे कि टोल फ्री नंबर्स डायलिंग के लिए हैं या फिर हमारे जो टेली वोटिंग के जो SMS सर्विसेज के लिए हैं या फिर ईमेल सर्विसेज के लिए हैं, वॉइस मेल के लिए हैं, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंसेस के लिए हैं, ये सारे डायल प्लान्स जो हैं कंसोलिडेटेड है और ये हर एक सॉफ्टवेयर में जो भी PBX सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं उन सभी में एक समान होता है. मतलब कहीं पर ये नहीं है कि आप किसी नंबर को डायल करने के लिए ABCDEF का डायलिंग प्लान करते हो, मतलब कहीं पर भी न्यूमेरिक्स ही यूज किए जाते हैं. So all numerics whatever can be used or the combination of number can be used in any of the standard dial plan, they have been explained in this extension.conf. गुड. तो ये स्टैंडर्ड डायल प्लान है, इसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं है, बट ये है कि इस डायल प्लान को लिखते समय हमें क्या क्या लिखना है वो ऑप्शंस हमें जरूर देने पड़ते हैं. तो दैट वी हैव टू सी दैट व्हाट ऑप्शंस वी आर गोइंग टू यूज फॉर इट. दैट मींस हमारी ऑप्शन क्या है कि हमारे डिवीजन के, हमारे जोन के या हमारे इंडियन रेलवे के डायल प्लान को हमने नॉन यूनिफॉर्म या फिर यूनिफॉर्म डायल प्लान के रूप में इस्तेमाल करना है. तो हम जो इंडियन रेलवे में यूज करते हैं वो है यूनिफॉर्म डायल प्लान. यूनिफॉर्म डायल प्लान का मतलब होता है कि ऑल आर यूजिंग यूनिफॉर्म एरिया कोड. यूनिफॉर्म एरिया कोड मतलब 3 डिजिट का एरिया कोड. हमारे एरिया कोड क्या है, 010 से लेकर 099 तक एरिया कोड है. और ये सभी जोन्स और सभी डिवीजन्स को, इंडियन रेलवे के सभी जोन्स और सभी डिवीजन्स को बांट दिए गए हैं. और सेंट्रल रेलवे से शुरू होकर ये जो WCR है हमारा वेस्ट सेंट्रल रेलवे, और जहां पर हमारा जो भावनगर स्टेशन है 099 जिसका STD कोड है वहां जाके खत्म होता है. तो शुरू होता है मुंबई डिवीजन से, मुंबई का कोड है 010 और अंतिम जो एंड जो हमारा STD कोड है वो है 099 भावनगर का, वो WCR में पड़ता है. तो हम जो यूनिफॉर्म डायल प्लान की जो बात कर रहे हैं उसमें 3 डिजिट का यूनिफॉर्म STD कोड
यूज किया गया है। और सभी लोगों ने ये निश्चित किया है कि सभी एक्सचेंजेस के नंबर 5 डिजिट के होंगे। ठीक है, तो उनके लोकल नंबर्स 5 डिजिट के हैं और जो एसटीडी कोड है वो 3 डिजिट के हैं। तो 010 से लेके 099 तक एसटीडी कोड हमें इस्तेमाल करने हैं और 5 डिजिट के जो लोकल नंबर होते हैं वो इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो 5 डिजिट के जो लोकल नंबर हैं वो 2 की सीरीज में या 3 की या 4 की या 5 की, 6 की और 8 की सीरीज में बनाए जा सकते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8 आर टू बी यूज्ड फॉर आवर लोकल डायल प्लान। तो आपके मुंबई के नंबर जैसे 5 की सीरीज में है तो 50, 51, 52, 53 ऐसे करके 59 तक सारे नंबर्स मुंबई में क्रिएट कर दिए गए हैं। मुंबई का कोड है 010। अगर आपको कॉल करनी है 010 515253 से लेकर 59 तक के किसी नंबर को आप 5 डिजिट में डायल करिए, आपकी कॉल मुंबई लग जाएगी। इसी तरह से पूरी इंडियन रेलवे में सभी एक्सचेंजेस में 5 डिजिट के नंबरिंग प्लान इस्तेमाल किए जाते हैं। वही एग्जांपल्स हम यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि हम इसको अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करना ही है और इसीलिए तो हम यहाँ पर हैं। चलिए तो चलते हैं आगे। पेज डाउन बटन से इस पेज को स्क्रॉल करते जाएं, गो टू द लास्ट लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट द डायल प्लान। डायल प्लान क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अब क्योंकि ये दोनों फाइलें एक दूसरे को पहचानती हैं, दैट मीन सिप डॉट cnf फाइल और एक्सटेंशन डॉट cnf फाइल ये दोनों एक दूसरे को पहचानती हैं। किस वजह से? कि उन दोनों को बताना है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बैठे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में हमें डायल प्लान लिखना है। हमने अपने सिप डॉट cnf फाइल में कॉन्टेक्स्ट का नाम tlab रखा था, इसलिए अब हम एक्सटेंशन डॉट cnf फाइल को बताएंगे कि अगर हम कोई नंबर डायल करें तो उसे किस कॉन्टेक्स्ट में सिप डॉट cnf में अकाउंट को ढूंढा जाए। तो अकाउंट को ढूंढने के लिए हमें उसी कॉन्टेक्स्ट का नाम भी इस्तेमाल करना है। सो नाउ एक्सटेंशन डॉट cnf फाइल में सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में आप कॉन्टेक्स्ट का नाम लिखें। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने tlab का नाम लिख दिया है और इसके नीचे जो डायल प्लान लिखी है अब उसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ इसलिए आपको उसे लिखा हुआ दिख रहा है, बट ये आपको टाइप करना होता है। डायल प्लान लिखने के लिए सबसे पहला जो लिखना है आपको, एक्सटेंशन का जो नाम है क्या कहते हैं कि एक्सटेंड इक्वल टू ग्रेटर देन, ये साइन है हमारे सिंटेक्स की। तो EXTEN इक्वल टू ग्रेटर देन ये हमेशा लगेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको लिखने का अलग मीनिंग भी होता है, मतलब कि किसी जगह पे ये एक्सटेंड नहीं लिखते हुए, क्योंकि बार बार एक्सटेंड 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 लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसी को लिख सकते हैं सेम 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 सेम। तो नीचे की वाली लाइन में आप यहाँ पे सेम लिख सकते हैं, SAM इज सेम, ओके, सेम इक्वल टू ग्रेटर देन और फिर आगे चले जाए, या फिर सेम लिख के भी आगे नंबर प्लान अगर आप लिख देते हैं तो सेम एक्सटेंशन इक्वल टू ग्रेटर देन साइन के बाद सारे नंबर्स प्लान आपको सेम सीरीज में अगर लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन खैर वो अपन बाद में देख सकते हैं जब आप हमें इसमें जब आप चीजों को सीख लेंगे और इसको आप करने लगेंगे तो फिर किस तरह से उसको शॉर्टकट में लिखा जा सकता है, दैट यू कैन सी इन दैट। तो अभी फिलहाल तो हम ये कर रहे हैं कि एक्शन इक्वल टू ग्रेटर देन लिखने के बाद हमें सबसे पहले इस लाइन को समझना है कि लाइन हमें इंडिकेट कर रही है क्या, कि पहले तो हमें बताना है कि क्या नंबर डायल किया जाए और उसकी प्रायोरिटी क्या हो, कि वो पहली प्रायोरिटी में कहाँ पर डायल हो, मतलब क्या डायल करें और कहाँ पर पहुंचे। तो ये दो डेस्टिनेशन है, मतलब हमारा है नंबर डायल करना है और किस जगह पहुंचना है उसको बताने के लिए। आई वॉन्ट टू कॉल माई GM अकाउंट एंड द डायल नंबर आई एम प्रोवाइडिंग 81001। ठीक है, ये चॉइसेबल है, ये आप फ्लेक्सिबल है, इसको आप जो अपनी मर्जी है उसके हिसाब से कर सकते हैं। 5 डिजिट के कोई भी नंबर 2, 3, 4, 5, 6 या फिर 8 की सीरीज के नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बिना STD कोड के 5 डिजिट का एक नंबर 81001 हमारे GM सर के लिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर दिया है। उसी तरह से हमारा एक और अकाउंट है जिसका नाम है CST और इन CST के लिए हमने जो डायल नंबर रखा है उसका नंबर है 81002। ठीक है, और दोनों को हमने लिख दिया है 81001, 81002। अगर डायल किए जाए तो उन्हें डायल करते हुए सिप अकाउंट GM या फिर सिप अकाउंट CST पर कनेक्ट किया जाए। तो अभी फिलहाल हमारे जो दो फोन है, अभी हम फोन आपको दिखाते हैं और ये दो लाइनें हैं, ये दो डायल हमारे GM और CST के बीच कॉल करने के लिए एक डायल प्लान का हिस्सा है। So this is the part of a dial number between calling between GM and CST. Okay, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? आगे की लाइनों के बारे में अभी ना सोचें, आप देखें कि वहाँ पे अभी बहुत सारी और लाइनें हैं, but don't worry about the other lines. Just consider that you are writing only these 2 lines for minimum connectivity between call between GM and CST. ठीक है? Anybody can say yes? Anybody yes?
Yes, sir. Okay, good. That only, because if nobody is talking, nobody is responding, means I will understand that I'm only talking. Are they listening? I'm not sure. So anybody in between can also interrupt that. Okay, sir. Yes, we got it understood. चलिए, तो इसको भी करना है same thing. Now we have to write out these lines after the editing the content. We have to write out. So just press Control and plus O, and it will write the line in the same file. extension.cnf फाइल में इसको लिख दीजिए. अभी ये दोनों फाइलें हमने लिख दी हैं. यहाँ से भी इसको हम एग्जिट कर देते हैं. कंट्रोल एक्स की मदद से यहाँ से बाहर आ जाएं. तो कंट्रोल एक्स से हम बाहर आ गए. एंड नाउ वी आर ऑलरेडी डन nanosip.cnf and came out. We have already done nanoextension.cnf and already came out. तो अब ये दोनों फाइलों को हम कॉन्फ़िगर करके बाहर आ चुके हैं. अब इन फाइलों को हमें वापस एस्टेरिस्क में लोड करना है. लोड करने के लिए हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है जिसका नाम है asterisk -rvvv. Okay, this is the debugging command. In that CLI we can upload the files, and also we can see the contents inside the server. और बहुत सारे जो डिबगिंग ऑप्शंस हैं वो हम इस S6RVV में कर देते हैं. So just enter into this command and now you are landing in Debian CLI command. ठीक है. अब इस CLI कमांड में आपको क्या करनी है, सबसे पहले तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी सिप फाइल, इसको लोड करना है. तो सिप को करेंगे हम रीलोड इस कमांड से. सिप रीलोड कमांड डाल देंगे और एंटर कर देंगे. अब हमारे जो सिप के जो कंटेंट है या सिप फाइल के जो कंटेंट है वो अब क्या कहते हैं कि हमारी एस्टेरिस्क के फोल्डर में जाके सेव हो गए. नाउ दे हैव बीन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड. ओके, जब तक हम लाइन सेव करते हैं, लाइन को लिखकर सेव करते हैं और बाहर आते हैं, वो सिर्फ लाइन सेव हो जाती है, लोड नहीं हुई होती है. वंस यू गो इनटू दिस CLI कमांड एंड type this zip reload, your files is getting reloaded again, and now the file is ready to implement, or file is ready to execute the commands in that. ठीक है. तो यहाँ पे एक zip.cnf फाइल में अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें कि एक zip.cnf पार्ट है, user.cnf पार्ट है और zipnotify.cnf पार्ट. तो हमने जो जो कंटेंट उसमें लिखे हैं वो कंटेंट यहाँ 3 अलग अलग फाइल में जाके क्या कहते हैं कि लग गए हैं, जमा हो गए और वहां पे वो सेव हो गए. ठीक है. आपको अगर सिप रिलोड अगर फॉल्टी है या अगर कुछ रिलोड नहीं हो रहा है तो आपको कुछ और ऑप्शन करने होते हैं. वो ट्रबल शूटिंग्स में आपको बता दिए जाएंगे कि व्हाट हैपेंस इफ द सिप इज नॉट गेटिंग रीलोडेड. अगर रीलोड सही से हो जा रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको 3 फाउंड दिखने चाहिए. अगर आपको ये 3 फाउंड दिख रहे हैं, फाउंड फाउंड फाउंड, तो आप समझ लें कि आपने जो सिप रीलोड फाइल जो डाली है वो अच्छी तरह से लोड हो गई है. ओके, यानी करेक्टली लोड हुई है. जो भी आपने उसमें कंटेंट डाले थे वो करेक्टली हुए हैं. तो 3 फाउंड आपको यहाँ पे दिखने चाहिए. दिख गए हैं, हमें तो दिख गए हैं. तो हमारी फाइल एग्जैक्टली डाउनलोड मतलब अपलोड हो गई है. नेक्स्ट कमांड हमको करनी है हमारे डायल प्लान को लोड करने के लिए, क्योंकि हमने दूसरा ऑप्शन क्या लिया था, extension.cnf में डायल प्लान बनाए थे. और डायल प्लान को लोड करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है डायल प्लान रीलोड. और ये डायल प्लान रीलोड को भी एंटर कर दीजिए और ये डायल प्लान भी लोड हो जाएगा. ये सारे जो डायल प्लान पहले से इसके अंदर बने हुए हैं वो सारे डायल प्लान भी लोड होंगे और जो नया डायल प्लान आपने बनाया है वो भी इसके अंदर लोड हो जाएगा. अब मेरा जो सर्वर का जो काम है वो तो खत्म हो गया, क्योंकि मैंने zip.cnf में अकाउंट बना दिए GIM और CST के लिए, और मैंने उनके डायल प्लान में 81001 और 81002 के 2 डायल नंबर भी बना दिए हैं. तो मतलब अकाउंट इज रेडी, डायल प्लान आल्सो इज रेडी. अब हम चलते हैं फोन की तरफ, और हमारे पास 2 सॉफ्ट फोन है. एक फोन का नाम है माइक्रोसिप, जो कि यहाँ पे आप मेरे राइट साइड में देख पा रहे हैं स्क्रीन के, और एक फोन है 3CX फोन, जो कि मैंने यहाँ पे पहले एक अकाउंट बनाया था DST के लिए. अब इसको हम एडिट कर देंगे. तो चलिए पहला एक फोन ओपन करते हैं. यहाँ पे आपको पहले एक न्यू अकाउंट ओपन करना है, और यहाँ न्यू अकाउंट में आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं GM. तो मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ GM का. कॉलर आईडी अगर आप चाहें तो उनका नाम लिख सकते हैं, जो भी GM का नाम हो. अगर नहीं है तो आप उनको भी बिना नाम या GM नाम से फिर से दोबारा कर सकते हैं. एक्सटेंशन हमारा जो है वो है GM, और उनकी जो आईडी है वो भी है GM. पासवर्ड जो हमने वहां पे लिया है ABCDEF. ये पासवर्ड जो हमने zip.cnf फाइल में secret equal to ABCDEF लिखा था उसी को यहाँ पे लिखना है. और हम किस सर्वर में कनेक्टेड है उस सर्वर का IP एड्रेस यहाँ पे डालना है. ठीक है. अभी आपको सर्वर IP एड्रेस अगर पता नहीं है तो आप अपने सर्वर में जाएं, फाइल से एग्जिट करें और यहाँ पे टाइप करें IPADD
तो इस सर्वर का जो आईपी एड्रेस है ये है इसका इथरनेट पोर्ट का नाम, ये लैन पोर्ट का नाम है ENP0S3। इस ENP0S3 में हमने जो आईपी एड्रेस डाली है वो है 195.1.130.172। तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं 10.195.130.172। ठीक है, ये आईपी एड्रेस मैंने यहाँ जो था ये वाला आईपी एड्रेस, ये सर्वर आईपी एड्रेस है, इसको मैंने अपने फोन पे डाल दिया है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर आप पब्लिक आईपी एड्रेस डालते हैं जहाँ पे आप पब्लिक नेटवर्क पे कनेक्टेड हो तो आप यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको दो ऑप्शन है, या तो आप इंट्रानेट या फिर इंटरनेट दोनों तरफ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या बोलते हैं इसको एक ही कोई आईपी एड्रेस इसमें यूज कर सकते हैं, या तो पब्लिक आईपी एड्रेस या फिर इंटरनेट का आईपी एड्रेस। जहां तक ये जो फोन है ये हमारे 3CX फोन सिस्टम के साथ में आता है, और ये 3CX फोन सिस्टम अलग से सिस्टम है जो बनाया गया है। खैर, हम अपने लोकल सर्वर में इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो वी विल कनेक्टिंग इट इन आवर लोकल सर्वर ओनली। लोकल सर्वर का आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया है, और अब इसको हम कर देते हैं ओके, और ओके करने पे यहाँ पर भी ओके कर दें। अब हमारा जो फोन है वो सर्वर में रजिस्टर होने के लिए रेडी। यहाँ पे देख पा रहे हैं जीएम का नाम आ गया है, और यहाँ पे उसकी स्टेटस दिखा रहे हैं ऑन हुक, यानी ऑन हुक मतलब टेलीफोन आइडल कंडीशन में इस समय बन गया है। नेक्स्ट और एक फोन है हमारे पास में माइक्रोचिप का, इस फोन पर भी हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, और इस समय हमारे अकाउंट का नाम होगा CSTE। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल सही से करें। अगर आपने अकाउंट का नेम कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो यहाँ पर भी अकाउंट का नाम कैपिटल लेटर में ही लिखें। ठीक है, और यहाँ जो आईपी एड्रेस है, अगर इसका आईपी एड्रेस तो सेम है, वही आपको क्या बताना था यहाँ पे आईपी एड्रेस, ये सर्वर का आईपी एड्रेस डालेंगे 130.172। ये सर्वर आईपी एड्रेस, प्रॉक्सी सर्वर आईपी एड्रेस सेम डाल देंगे 130.172, और यहाँ पे इनका यूजर नेम CSTE। डोमेन नेम अगर है आपके पास तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप वहां पर भी सेम नाम यूज कर सकते हैं। पासवर्ड हमने यहाँ पे लिया है ABCDE, तो मैं ABCDEF यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिस्प्ले नेम जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं, राजेश कुमार, रमेश कुमार। ये डिस्प्ले नेम कॉलर आईडी के रूप में बाहर जाता है। ठीक है, तो CST अकाउंट नेम हमारा है, लेकिन उसको अगर हमें कोई कॉलर आईडी डिस्प्ले करानी है देन वी कैन गिव सम नेम, otherwise we can keep as it is. Okay, and rest of the things are not required. So just go to the save button and save it. Now you can see that my phone with the CST is online, that means it is already available, और DST का जो फोन है, सॉरी GM सर का जो फोन है वो भी अवेलेबल है। GM सर के लिए हमने नंबर इस्तेमाल किया है 81001 और 802। अब हमारी कॉल हम सर्वर में देखने के लिए एक बार फिर से सर्वर की तरफ चलते हैं, सर्वर में आए, सर्वर में CLA कमांड में जाएं और यहाँ पे रुके रहें। नाउ विल सी द रिफ्लेक्शन ऑफ माय कॉल इनटू दिस सर्वर, कि देखिए सर्वर में कॉल आई है या नहीं आई है। गुड, तो चलिए CST सर का नंबर है 8002, तो 8100 डायल करते हैं और कॉल लगा के देखते हैं। तो हमारी कॉल GM सर के फोन से CST फोन के पे आ गई है। So this is the call running and this is the reflection of your call inside the server. इस सर्वर में आपकी कॉल, GM सर की कॉल CST अकाउंट को लग गई है। Okay, so the call is running. Anybody can say yes? Sir. Hello? Yes sir. Any other participant? सभी ने देख लिया है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया है, पहले हमने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया, उसके बाद में उसमें एस्ट्रिक्स इंस्टॉल की। एस्ट्रिक्स इंस्टॉल करने के बाद हमने उसमें जो sip.cnf फाइल है उसमें दो अकाउंट क्रिएट किए, एक अकाउंट GM सर का, एक अकाउंट CST सर का, और ये दोनों अकाउंट के बाद हमने उसमें एक डायल प्लान फाइल में डायल प्लान बनाया, जिसमें हमने इनके जो कॉलिंग नंबर्स हैं 81001 और 81002, ये दोनों नंबर्स उसमें कॉन्फ़िगर किए, और फिर उन फाइल को रीलोड करने के बाद अब हम इस कमांड में देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारी अब कॉल जो है
दोनों नंबरों को डलनी शुरू हो गई है। तो अब TST से हम GM सर को कॉल कर देते हैं, यहाँ पर GM सर को कॉल आ रही है, नाउ कॉल हैज बीन कनेक्टेड। ठीक है, तो इस तरह से आप एक लोकल सर्वर में यूजर्स क्रिएट करके, उनके अकाउंट क्रिएट करके, उनके डायल प्लान क्रिएट करके कॉलिंग करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको ओके है? ओके, यस सर। हाँ, और किसी को कोई पूछना है? पूरी क्लास में से कोई भी नहीं है जो पूछना चाहते हो? Yes, yes, I can see in the chat box. Let me open the chat box here. एक बार chat box करते हैं। किसी ने कहा है, दीपेन शाह जी बोल रहे हैं, ओके सर। दीपेन जी, हाउ आर यू? Fine, sir. How are you, sir? गुड, वेरी, आई एम आल्सो गुड बेटा, आई एम आल्सो गुड। और ये हैं प्रवीण कुमार, इन्होंने भी कहा है ओके सर। दैट मीन्स या पीपल आर रिस्पॉन्डिंग। राकेश कुमार आल्सो इज सेइंग ओके सर। So any doubts in that? That now it is very easy that you can write a simple dial plan for dialing the numbers and the creation of account कैसे बनाना, डायल प्लान कैसे बनाना, बस सिंपल लाइनें हैं। आप इसको हमारी लैब शीट जो अवेलेबल है हमारी इंटरनेट पर, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या उसमें से भी आप उनकी मदद से भी आप अपनी डायलिंग की जो स्कीम है, जो डायल प्लान कैसे लिखा जाता है, उसको आप बना सकते हैं। वेरिएबल्स जो है वो सिर्फ ये है, आपके जो डायल नंबर होते हैं वो वेरिएबल्स हैं। आप कौन से वेरिएबल यूज करना चाहते हैं वो आप अगर करें तो आप अपनी मनपसंद डायल प्लान को अपने सर्वर में इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा एक सर्वर में। तो एस्ट्रिक्स का कोई मैनुअल होगा जो मतलब आप शेयर कर सकें तो हम उसको थोड़ा बैठ के प्रैक्टिस भी करें। नहीं, क्या ऑनेस्टली आप थोड़े फास्ट चले गए हैं सर, कुछ चीजें तो मतलब बाकी रह गई। ओके, नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। हम आपको फिर से, अगर यहाँ पे है तो मैं फिर से इसी सर्वर में फिर से आ जाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ इस टर्मिनल को फिर से बंद कर देता हूँ, आपके सामने बंद कर रहा हूँ, और फिर से हम एक टर्मिनल फिर से खोलते हैं। तो पहले तो आप टर्मिनल पे जाएं और टर्मिनल से एक टर्मिनल सर्च करें अपने लिए। राइट, और सर्वर में लॉगिन करने के लिए आपको पहले यूज करना है SU, इसका मतलब है सुपर यूजर। सुपर यूजर से आप एडमिन मोड में लॉगिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पासवर्ड यूज किया है reset और एंटर कर दिया है, एंड नाउ आई एम इन द एडमिन मोड। दैट मीन्स इन द रूट मोड यू कैन एडिट द फाइल्स। उसके लिए हमें पहले तो CD ETC में जाना है, क्योंकि ETC वो फोल्डर है जो हमारे एक्चुअली विंडोज सॉफ्टवेयर जो हम लोड करते हैं, विंडोज जब लोड करते हैं तो हमारा एक C ड्राइव में एक फोल्डर बनता है जिसका नाम होता है प्रोग्रामिंग फाइल्स, है ना। तो जो प्रोग्रामिंग फाइल्स होती है उसी में जाके, उसी फोल्डर में जाके सारे जो हम इंस्टॉलेशन करते हैं वो सभी उसी में जाके इंस्टॉल होते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट C ड्राइव के प्रोग्रामिंग फोल्डर में हमारे सारे इंस्टॉलेशन होते हैं। इसी तरह से TLAB जो आए हैं, TLAB आप पहले से ही कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। TLAB कैसे आए सर इसमें? TLAB@Debian। हाँ, ये बता देता हूँ मैं कि हम जब इंस्टॉलेशन करते हैं उस समय में एक एडमिन क्रिएट होता है, एडमिन पासवर्ड क्रिएट होता है, जो कि हमने पहले यूज किया ना, यहाँ पे SE और पासवर्ड, ये एडमिन पासवर्ड था। ठीक है, एडमिन पासवर्ड के बाद में हम जो है यूजर जो है TLAB है, इस लैब उसमें हमें एक यूजर भी क्रिएट करना होता है। उस समय में हम ये एक यूजर का नाम देते हैं। हमने यहाँ पे TLAB दिया है, आप वहाँ पर राजेश, रमेश या जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकेंगे। तो वहाँ पे एक यूजर क्रिएट करना पड़ता है, उसका एक पासवर्ड यूज करना पड़ता है। तो दोनों से आप लॉगिन कर सकते हैं। ये जो TLAB जो यूजर है, ये इस कंप्यूटर की फाइल्स को क्या बोलते हैं, मैनेज करने के लिए है। और सर्वर को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो आपको रूट मेन्यू में आना है, मतलब आपके जो एडमिन मोड है उसमें आना है। तो हमने यहाँ पे सुपर यूजर जो यूज किया है वो हम इस ETC फोल्डर में जाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ETC फोल्डर सीधे लेते तो यहाँ ETC फोल्डर नहीं खुलेगा आपको। मतलब यहाँ पे TLAB Debian जो है यहाँ पे, इसमें आपको लॉगिन करने का जो पासवर्ड है उसको करने के बाद ही आप TLAB फोल्डर में जा सकते हैं। तो TLAB यूजर है, यूजर को आप एक्सेस दे रहे हैं कि वो आपके सर्वर को एक्सेस कर सके। तो अब से ये जो TLAB यूजर है, ये अब यहाँ पे हमारे
जो ETC फोल्डर है इसमें जाकर अब काम कर सकेगा। मतलब TLAB से अब वो निकल के हमारे जो है सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन में फोल्डर को ओपन करने के लिए, मतलब TLAB इज नाउ द यूजर इज नाउ यूजिंग ओपनिंग ETC फोल्डर। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे अब TLAB से निकल कर आप ETC फोल्डर में आ गए। दैट मीन्स नाउ यू आर एक्सेसिंग दी फोल्डर ETC in my home computer. The user is TLAB. This is my home computer and the user is TLAB and he is authorized to open this ETC folder, and in this ETC folder there is a folder called as a asterisk. तो यहाँ पे आप CD asterisk अगर डाल देते हैं तो डायरेक्टरी ASTERIS के इसको डाल दीजिए, asterisk में आ गया। ओके, बस इतना ही करना है आपको। सुपर यूजर में लॉगिन करना है और यहाँ ETC फोल्डर का पाथ देते हुए आप ETC फोल्डर से एस्ट्रिक्स फोल्डर में आ जाएं। इसके बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन जो आप कर रहे थे वो आपकी जो zip.cnf फाइल या extension.clf फाइल जो है उनको करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडिटर हमने यूज किया है नैनो, और हर एक फाइल जो भी इस एस्ट्रिक्स की है उसको एडिट करने के लिए नैनो एडिटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नैनो इज द वर्ड which is indicating that you are using an editor called nano to edit this zip.cnf file. After entering into this file, you are getting this example file. इस example file के नीचे जो सबसे आखिरी वाली जो लाइनें हैं जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट खत्म हो जाती है वहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। ऐसे अलग अलग अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कोई GM के लिए अकाउंट होगा, CST के लिए अकाउंट होगा, बाकी के जो अन्य जो सर्वर हैं, नेबरिंग सर्वर्स हैं, नेबरिंग सर्वर्स के अकाउंट होंगे। इस समय बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारे अकाउंट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे अभी आपको 2 अकाउंट दिख रहे हैं, 3 या 4 दिख रहे हैं। आपके सर्वर में हो सकता है 1000, 2000, 3000 अकाउंट आपको वहाँ पे बनाने हो। जिस तरह से हम अपने ईमेल सर्वर में मेल अकाउंट बनाते हैं, तो वो उस मेल अकाउंट में आप जाएंगे तो उसी तरह से आपको लाखों ईमेल अकाउंट वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो उस अकाउंट में क्या क्या लिखना है वो ये लिखने की चीज़ें आपने यहाँ पे बनाई हुई है। So this I am creating a account for GM and account for CST. यहाँ तक समझ में आ गया? सर ये लाइनेक्स का IP एड्रेस का कार्ड का कैसे सेट करते हैं सर? हाँ, यहाँ पे IP टाइप करना है, IP IP एड्रेस। ठीक है, ये IP एड्रेस अगर आपने DHCP से ऑप्टेन किया है तो यहाँ पे DHCP से भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे स्टैटिक IP एड्रेस देना है, क्योंकि डायनेमिक कभी भी चेंज हो सकते हैं आपके सर्वर IP एड्रेस, तो आपको डायनेमिक एज यूज नहीं करना है, आपको स्टैटिक IP एड्रेस यूज करने हैं। तो यहाँ पे आपको एक कमांड करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहाँ पे करना है। तो CD ETC और ETC में आपको जाना है नैनो कमांड करते हुए, या इसको आप देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे एलएस दिखा देता हूँ ETC की। इस ETC एलएस में नेटवर्क कमांड होती है, LMNN। ओके, नेटवर्क। तो इस फोल्डर में जाना है। तो ETC नेटवर्क में जाइएगा आप। तो यहाँ पे ETC आ गया है। अब CD नेटवर्क में जाएं। CD नेटवर्क में आने के बाद आपको यहाँ पे एक इंटरफेस फाइल दिखेगी जिसका नाम है नैनो इंटरफेसेस। इस वाले कमांड में जाना है, नैनो इंटरफेसेस में। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे नैनो इंटरफेसेस। यहाँ पे मैंने देखिए ये IP एड्रेस यहाँ पे डाल रखा है। मैंने तो पहले यहाँ पे दे दिया है iFace लो iNet लूपबैक। ये लूपबैक एड्रेस वहाँ पे होता है, और एक होता है हमारा जो DHCP पाइप है। यहाँ पे मैंने DHCP दे रखी है। तो देखिए आप यहाँ पे DHCP है। अगर आप स्टैटिक करना चाहते हैं तो इसी जगह पर आपको यहाँ पे पहले आके करना है स्टैटिक। इसको आप स्टैटिक बना दें, और स्टैटिक बनाने के बाद यहाँ पे स्टैटिक लिखना पड़ेगा आपको। स्टैटिक लिखने के बाद में आपको बाकी की कमांड लिखनी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लिखा जाएगा। वो इस तरह से लिखेंगे उसको। देखिए मैं कर देता हूँ आपके लिए 1 मिनट के लिए। iFace ENP ये आपका जो लैन कार्ड है या लैन जो अडाप्टर कार्ड है उसका एड्रेस, उसका नाम है ENP0S3। नॉर्मली हम लोग ETH0 ETH1 बोलते हैं ना। तो ETH0 या ETH1 नथिंग बट दे आर द नेम ऑफ द अडाप्टर्स इन दैट सिस्टम। यहाँ पर हमारी जो मशीन है ये वर्चुअल मशीन है और ये इनकैप्सुलेटेड है। तो इनकैप्सुलेटेड जो लैन पोर्ट होते हैं उनकी जो नेमिंग है वो इनकैप्सुलेटेड नेम होती है ENP0S3, ENP0S1 या S2। यहाँ पे हम जो नाम देख रहे हैं वो है ENP0S3। ओके, तो ENP0S3 में आपको अब यहाँ पे कमांड करनी है, इसको बनाना है स्टैटिक।
इस तरह से आपको लिखनी है। तो DHCP से आपको IP एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जब स्टैटिक लिखते हैं दैट मीन्स नाउ यू कैन प्रोवाइड IP एड्रेस स्टैटिकली। तो यहाँ पे आप पहले तो टैब बटन से जाएं, यहाँ पे लिखेंगे हम ADDRESS, यहाँ पे टाइप कर दीजिए आपका IP एड्रेस 10.195.130.172 इस तरह से। फिर इसका हम देंगे नेट मास्क। ओके, नेट मास्क में आप दे दीजिए 255 वो भी आपको जो भी /24 क्या क्या होते हैं ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा नेटवर्क नहीं पता है, लेकिन आप अगर जानते हैं कि हाउ टू assign a IP address to a computer, then definitely you are providing 3 things into it: IP address, net mask that is subnet, and gateway IP address. यहाँ पे आप लेंगे गेटवे के को देना है 10.195.130.254, है ना। सभी लोग यही 3 चीजें देते हैं ना अपने IP एड्रेस में। कंप्यूटर पे एड्रेस सेट करना होता है तो क्या करते हैं, कंप्यूटर पे एक IP एड्रेस डालते हैं, उसका सबनेट मास्क डालते हैं और गेटवे IP एड्रेस डाल देते हैं, होगा। ये 3 चीजें कर दो, ओके कर दो, आपका काम खत्म। इज इट नॉट राइट? एनीबडी कैन से यस। तो DHCP सर्विसेज को बंद करके आप स्टैटिक IP एड्रेस डाल के भी इसको काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा सर्वर एक जगह से दूसरी जगह बार बार नहीं जाता है। आई एम यूजिंग द सर्वर ऑन द सेम प्लेस, आई कैन यूज DHCP, बट इन एक्चुअल फील्ड you need not be using DHCP scheme, but you should be adopting static IP address, a fixed IP address for that. यहाँ पे मैंने IP address थोड़ा सा गलत डाल दिया है, सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे 130 होना है, गुड। तो देखिएगा कहीं पे न्यूमेरिक मिस्टेक्स या इस तरह की कोई मिस्टेक्स ना हो, ताकि आपकी जो फाइल है वो सही तरह से एग्जीक्यूट हो। तो इस तरह से आप स्टैटिक IP एड्रेस या फिर डायनेमिक IP एड्रेस अपने सर्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है सबको? ये मैं अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहा हूँ स्टैटिक, आई एम जस्ट यूजिंग द सेम थिंग, Ctrl+X। Yes, sir. Yes. ओके, तो नैनो इंटरफेस आपको काम करना है। ETC फोल्डर से पहले नैनो नेटवर्क फोल्डर में जाना है। नेटवर्क फोल्डर से आप यहाँ पे इंटरफेसेस फाइल को ओपन करेंगे और उसमें ये स्टैटिक IP एड्रेस देकर उसको सेव करके, अगर आप स्टैटिक IP एड्रेस यूज करना चाहते हैं और आपने कर दिया है और आप फाइल को आपने कंप्लीट कर लिया है, लिख लिया है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे और एक ऑप्शन होती है, सर्विस को आपको रिस्टार्ट करना है। जैसे आप IP एड्रेस देने के बाद में अपने कंप्यूटर को फिर से ऑन करते हैं ताकि ये IP एड्रेस उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए और उसका IP एड्रेस नेटवर्क पे मिल जाए, तो हम यहाँ पे उसी तरीके कमांड करते हैं, जिसको कि आपको सर्वर को शट डाउन नहीं करना होता है, बट यू हैव टू रीस्टार्ट द सर्विसेज टू इम्प्लीमेंट दैट IP एड्रेस। तो सर्विस नेटवर्किंग रीस्टार्ट, ये कमांड अगर आप कर दें तो आपका कंप्यूटर आपके लैन अडाप्टर कार्ड को फिर से स्टार्ट करता है और IP एड्रेस जो आपने स्टैटिक उसमें दिया हुआ है वो IP एड्रेस आपके नेटवर्क पे पहुंच जाता है और आपको फिर इंटरनेट एक्सेस मिल जाती है। ठीक है, तो सर्विस नेटवर्किंग रिस्टार्ट को एंटर कर दें और अपने IP एड्रेस जो स्टैटिक आपने दिया था उसको इम्प्लीमेंट कर दें। So just wait for 1 or 2 minutes, it will get restart again and it will implement it. Right. So now the IP address I can check, अगर आपने स्टैटिक दिया होता और अगर IP एड्रेस मिल गया है तो आप यहाँ पे IP एड्रेस डालते हैं IPADD, और IPADD में अगर आपको यहाँ पे IP एड्रेस दिख जाता है, इसका मतलब आपने जो स्टैटिक IP एड्रेस दिया था वो इम्प्लीमेंट हो गया है। मैंने चेंज नहीं किया था, इसलिए अभी मेरा IP एड्रेस यही है 10.195.130.172, so I am not changing it। और फिर से अगर हमें वापस बाहर आना है तो आप ETC और वापस अपने S6 फोल्डर में आ जाएं और फिर से S6 फोल्डर में यहाँ पे आप फिर nanosip.cnf और डायल प्लान की जो फाइल है उसको कॉन्फ़िगर करें, फोन कॉन्फ़िगर करें और चला लें, काम खत्म। इज इट नॉट सही है? ये थी nanosip.cnf फाइल, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। इसी में मैंने अकाउंट भी क्रिएट किए थे और मेरे डायल प्लान भी सिर्फ extension.cnf में अकाउंट भी क्रिएट किए थे। तो ये मेरे दोनों अकाउंट यहाँ पर हैं, और जब एक बार अकाउंट बन जाते हैं तो बार बार आपको इस sip.cnf फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक बार अकाउंट बन गया। उसके बाद में जो कुछ भी करना है कि ये अकाउंट अब किन किन चीज़ों को डायल कर सकता है, उसको डायल करने के लिए उसकी ऑप्शंस हमको उसके डायल प्लान में लिखनी होती है कि GM सर कैन कॉल टू CST, डायल प्लान लिखें। GM सर कैन एक्सेस हिज
वॉइस मेल, उसके लिए डायल प्लान लिखें। GM sir can participate in conference, उसके लिए डायल प्लान लिखें। That means for this account GM, what are the dial numbers we have to assign for various services to be taken from the server? We have to assign a dial number in the extension.cnf file in asterisk. That's all. तो बहुत सारे टाइम अकाउंट फाइल ज़्यादा बार उपयोग नहीं आती है, वो सिर्फ एक बार लिखने के काम आती है फर्स्ट इनिशियली, and then afterwards we have to go and interact with the extension.cnf file most of the time to write the dial plans newly, or maybe some changes in the dial plans, some numbering plans has been changed, we have to modify in the extension.cnf file. तो extension.cnf फाइल हमारी डायल प्लान कभी अगर चेंज होता है, और अगर एक बार ये सभी चीज़ें लिख जाएं और सब कुछ एकदम ठीक ठाक हो जाए, तो अपने सर्वर को मिनिमाइज कर दीजिए विंडो को और घर चले जाएं, आराम से चाय वाय पिए, सर्वर अपना आराम से काम करता रहेगा। यू नीड नॉट वरी अबाउट दी कॉल्स related unless until there is some network issues or some phone issues, then only you have to see that what has gone wrong with that connection, otherwise no need. So inside the server there is nothing that today the file was working, tomorrow the file is not working, something has gone wrong with the server will not happen generally very frequently. Okay, बहुत बार बार से ये फेलियर नहीं आते सर्वर में। आपका एक बार जो डायल प्लान या सब कुछ आपने लिख दिया है, तो आप निश्चिंत रहें कि जब तक कि इसको कोई छेड़ेगा नहीं, जब तक इसमें से कोई कंटेंट चेंज नहीं होंगे, तब तक ये फाइल अपनी उसी अवस्था में काम करते रहेगी 24 आवर्स 365 डेज। गुड। चलिए, तो अभी हम लोगों ने जो देखा है वो एक ही सर्वर में दो फोन को चलाकर इनमें आपस में कॉल करने का सिस्टम देखा था। अब हम देखेंगे कि दो अलग अलग सर्वर में, अच्छा अभी 12:15 बज रहे हैं, आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहेंगे? Do you want one? Okay, so we'll take a 5-minute break, and by 12. Good. So now I have 3 servers over here. पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे एक साउथ सेंट्रल रेलवे का सर्वर, यहाँ पे फोन को मैं नीचे कर देता हूँ पहले तो, और एक सर्वर है साउथ सेंट्रल पे यहाँ रख देते हैं, एक सर्वर है सेंट्रल रेलवे का सर्वर। अब ये तीनों सर्वर में मैंने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और S6P बेस्ड एप्लीकेशन लोड की हुई है तीनों सर्वर में, और ये कंसेप्ट अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये है एनजीएन सर्वर, बिल्कुल सेम तीनों सर्वर हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट टू पॉइंट कॉल यानी मिस ट्रंकिंग, मतलब सेंट्रल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे के बीच में सीधे पॉइंट टू पॉइंट कॉलिंग, और अगर एनजीएन हम अगर बीच में लेकर आते हैं तो फिर इनकी कॉल वाया एनजीएन कैसे चल पाती है। तो वाया एनजीएन, क्योंकि एनजीएन हमारे पास में जो एंटिटी है सर, दिस अलाउज ओनली 8 डिजिट डायलिंग प्लान, क्योंकि उनके पास में जो एरिया कोड है उसको फिल्टर करने की ऑप्शन है, सो दैट when we call from Mumbai to Secunderabad or from Secunderabad to Delhi, we are using a STD code in between. So 010 to 099 STD code will be filtered in NGN server. That means the servers within them can use 5-digit dialing without STD code, but when they call to another zone or a division, they have to use STD code, and that STD code is filtered in the centralized server in NGN. And NGN will filter the 3 digit, and it will pass on the 5 digit to the next exchange. So if suppose Central Railway want to call to South Central Railway, they will use the STD code 070 and some 5-digit number. This 070 will be filtered in this NGN server, and 5 digit will be passed on to this South Central Railway server. ठीक है, आपको समझ में आ गया कि 3 सर्वर मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? गुड। चलिए, तो अब एनजीएन सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी ऑलरेडी हमारे पास में ये 2 सर्वर हैं, इन दोनों सर्वर में हमें क्या करना है। तो पहले तो एक पावर पॉइंट है मेरे पास में, इसको मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर दूं मेश ट्रंकिंग के लिए। तो ये है हमारे लिए, मान लीजिए कि एक सेंट्रल रेलवे सर्वर है, एक साउथ सेंट्रल का सर्वर है, या कोई वेस्टर्न रेलवे में है। इस तरह से पूरे के पूरे जो सर्वर्स हैं वो सभी सर्वर्स हमारी इस एसटीएम लिंक पर कनेक्टेड हैं एक इथरनेट कनेक्टिविटी से। तो इस एसटीएम लिंक में हमने एक इथरनेट पोर्ट सभी जगहों पर ड्रॉप इंसर्ट करते हुए रखा हुआ है, और उसी इथरनेट पोर्ट से एक लैन स्विच की मदद से ये सारे सर्वर्स उसमें कनेक्टेड हैं, और सभी अपने पास जो है रेलनेट का जो आईपी एड्रेस है
नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस है वो सभी सर्वर्स में हमने वहाँ पे स्थापित कर दिया है। ये सभी सर्वर आपस में एक दूसरे को कॉल कनेक्ट करने के लिए अब जो डायल प्लान बनाएंगे तो वो डायल प्लान 5 डिजिट का डायल प्लान या फिर एसटीडी कोड के साथ डायल प्लान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली मेश ट्रंकिंग में या जो विद इन हम कहते हैं कि जोन और डिवीजन के बीच में जो डायल प्लान है वो विदाउट एसटीडी कोड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एसटीडी कोड नहीं लगता है। लेकिन अगर डिवीजन के बाहर या जोन के बाहर जब हम दूसरी जोन में जब कॉल करते हैं तो वहाँ पे हम एसटीडी कोड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये 3 अलग-अलग सर्वर हैं, तीनों को हमने जो है विदाउट एसटीडी कोड डायलिंग या एसटीडी कोड डायलिंग दोनों की मदद से भी बनाने की कोशिश करेंगे। हम उसमें सर्वर में आपको दिखा देंगे, ठीक है? तो 3 सर्वर हैं, तीनों सर्वर का हम एग्जांपल वहाँ सर्वर में बताएंगे। तो ये 5 डिजिट की डायलिंग आपको पता ही है कि 5 डिजिट नंबर्स वहाँ पे एक्सचेंज किए जाएंगे और ये तीनों सर्वर आपस में जुड़े होंगे, ठीक? तो ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है सेंट्रलाइज सर्वर की ऑप्शन है, जहाँ पे आप सेंट्रलाइज रूटिंग करते हैं। तो सेंट्रलाइज सर्वर में क्या किया जाता है कि सर्वर 1 और सर्वर 2 के बीच में ये कॉल जो जाती है वो वाया एनजीएन सर्वर जाती है, जहाँ पर पहले 3 डिजिट जो है माइनस कर दिए जाते हैं या रिमूव कर दिए जाते हैं। तो जब सर्वर 1 अगर सेंट्रल रेलवे से कॉल करता है सर्वर 2 साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ, तो 070 एसटीडी कोड को यहाँ इस एनजीएन सर्वर में निकाल दिया जाता है और बाकी के बचे हुए 5 डिजिट जो है वो साउथ सेंट्रल रेलवे में ड्रॉप कर दिए जाते हैं। उसी तरह से साउथ सेंट्रल रेलवे से अगर जब कोई डायल करता है सेंट्रल रेलवे की तरफ, तो वहाँ पर उसका एसटीडी कोड 010 इस एनजीएन सर्वर से निकाल दिया जाता है और बचे हुए 5 डिजिट सेंट्रल रेलवे की तरफ फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह से जो है 3 डिजिट को फिल्टर करना और 5 डिजिट को आगे पहुंचाने का काम इस एनजीएन सर्वर में या सेंट्रल सर्वर में किया जाता है। सेंट्रलाइज ट्रंकिंग का मतलब है कि सारे के सारे सर्वर जो है इस सेंट्रलाइज सर्वर को टारगेट करते हैं, वहां पर 8 डिजिट भेजते हैं, 3 डिजिट उसमें से माइनस होते हैं और बाकी के बचे हुए 5 डिजिट आगे वाले सर्वर की तरफ फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है? यह है सेंट्रलाइज रूटिंग का काम। दोनों स्कीम है, मेश ट्रंकिंग और सेंट्रल ट्रंकिंग दोनों ही। तो चलिए अब हम देखते हैं ये दोनों सर्वर में कॉल करने के लिए। अभी एनजीएन को हम फिलहाल इस्तेमाल नहीं करेंगे और क्योंकि अब हमारे पास में 2 सर्वर हैं और दोनों सर्वर में हमें अभी अकाउंट भी क्रिएट करने हैं। तो इस सर्वर में साउथ सेंट्रल सर्वर में दोनों नंबर यहाँ भी साउथ सेंट्रल में ही चल रहे हैं, यहाँ पर हैं दोनों फ़ोन। इसके पास में अभी फिलहाल कोई फ़ोन नहीं है, हम इसमें से एक फ़ोन साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब इसमें हम जो अकाउंट है सेंट्रल रेलवे का बनाएंगे, सेंट्रल रेलवे का अकाउंट इसमें रहेगा और सेंट्रल रेलवे का आईपी एड्रेस इसमें पड़ा रहेगा, ठीक है? तो एक फ़ोन हम यहाँ इसमें यूज़ करेंगे, एक फ़ोन इस सर्वर के साथ में यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले तो हम सर्वर में क्या-क्या करना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। लॉगिन करेंगे हमारे क्रेडेंशियल रीसेट पासवर्ड के साथ और यहाँ पे जो टर्मिनल है पहले से मैंने ओपन किया हुआ था, तो आपको यहाँ पे ओपन टर्मिनल यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है। तो ओपन टर्मिनल में जाकर पहले तो हमें sip.cnf फाइल में इस नाम के लिए एक अकाउंट बनाना है, ठीक है? और फ़ोन कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं हम? ये वाला फ़ोन इस्तेमाल करने हैं, ठीक है? तो इस जीएम वाले नंबर को हम जो अभी पहले हमारा साउथ सेंट्रल नंबर में चल रहा था, अब इसको हम यहाँ पे निकाल देंगे और इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे सेंट्रल रेलवे के सर्वर के साथ। क्योंकि हमारे पास फ़ोन नहीं है अलग से, इसलिए हम इसी फ़ोन को इस सर्वर से निकाल कर अब दूसरे सर्वर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अकाउंट बनाना है सेंट्रल रेलवे सर्वर में और यहाँ पर भी हम बना देते हैं अकाउंट। एसएससी का अकाउंट तो है ही है, नो प्रॉब्लम, एसएससी अकाउंट भी चलेगा, नो नीड। तो एसएससी अकाउंट बना दिया है यहाँ पर और इसमें टाइप इक्वल टू फ्रेंड, होस्ट इक्वल टू डायनामिक, ये सारी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे लिख दी हैं। इसी तरह से आपको और भी अकाउंट बनाने हो तो आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं, एएसटी, डीएसटी और ये बाकी के जो अकाउंट है। अब इसमें और दूसरा क्या करना है कि अब हम करने वाले हैं कॉल 2 सर्वर के बीच। इसका मतलब है कि साउथ सेंट्रल और सेंट्रल रेलवे के बीच में कॉल होनी है। दैट मीन्स वी रिक्वायर द अकाउंट ऑफ नेबरिंग सर्वर ऑल्सो। तो सेंट्रल रेलवे का नेबर कौन है? साउथ सेंट्रल रेलवे। और साउथ सेंट्रल रेलवे का अकाउंट अगर नेबर है तो यहाँ पे उसका अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे उसका अकाउंट बनाया है SCR के नाम से, SCR और उसका अकाउंट। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए कि जो लोकल यूजर अकाउंट होते हैं उसमें हम होस्ट इक्वल टू डायनामिक रखते हैं, मतलब फ़ोन पर जो अकाउंट क्रिएट करना है उसका होस्ट डायनामिक रखते हैं और जो सर्वर के साथ में अकाउंट बनाना होता है वहाँ पर हम इसका फिक्स अकाउंट कर देते हैं या फिक्स आईपी एड्रेस कर देते हैं। तो साउथ सेंट्रल रेलवे का जो आईपी एड्रेस है उसका आईपी एड्रेस है 10.195.131.72। तो ये यहाँ पे हमने इसका नाम नंबर दे दिया है आईपी एड्रेस सेंट्रल रेलवे में।
और इसी तरह से सेंट्रल रेलवे के साउथ सेंट्रल रेलवे में भी हमको एक अकाउंट बनाना है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, अभी दोनों में आपस में एक दूसरे का अकाउंट बनाना है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे का अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये दोनों जो है नेबर हैं आपस में। सेंट्रल रेलवे का नेबर है साउथ सेंट्रल रेलवे, और सेंट्रल रेलवे का नेबर, साउथ सेंट्रल रेलवे का नेबर है सेंट्रल रेलवे। तो ये दोनों के लिए यहाँ पे अकाउंट बने हुए हैं। तो एक अकाउंट इस सर्वर का इसमें बना दिया, इसका अकाउंट इस सर्वर में, दोनों अकाउंट बन गए हैं। देख पा रहे हैं ना आप? इज इट? दो अकाउंट क्रिएट करने हैं आपको नेबरिंग सर्वर के। हाँ, तो अभी हम दोनों सर्वर के आपस में एक दूसरे के अकाउंट क्रिएट कर देंगे, उनके आईपी एड्रेस एक दूसरे को बता देंगे। तो ये आईपी एड्रेस इसके साथ कम्युनिकेट करेगा और ये आईपी एड्रेस इसके साथ में कम्युनिकेट करेगा। तो अब ये दोनों कम्युनिकेशन करने के लिए तो तैयार हैं, और अब इनमें हमें करना है कि दोनों के आपस में कॉलिंग। तो उसके लिए डायल प्लान भी बनाना पड़ेगा। तो डायल प्लान हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, सेंट्रल रेलवे का एसटीडी कोड है 010, साउथ सेंट्रल रेलवे का एसटीडी कोड है 070। तो हमें दोनों के लिए क्या करना है, एसटीडी कोड का इस्तेमाल करना है, उनके 5 डिजिट नंबरिंग का इस्तेमाल करना है। तो चलिए सेंट्रल रेलवे में चलते हैं, जहाँ पे हमने एक अकाउंट क्रिएट किया है जिसका नाम है SSE, है ना, SSE अकाउंट है। और इस SSE अकाउंट को हमें फोन पे इस्तेमाल करना है, और उसके लिए डायल प्लान का डायल नंबर भी बनाना है। चलिए डायल प्लान नंबर में चलते हैं, डायल प्लान बना ले। Ctrl+X, मॉडिफाई द बफर, नो, और एक्सटेंशन .unf में इसका डायल प्लान भी लिखा हुआ है। पेज डाउन बटन से नीचे की तरफ जाएं, सबसे नीचे वाली लाइन में यहाँ पर आप देखिए एसएससी के लिए यहाँ पे डायल नंबर क्या है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्टेक्ट हमने इस्तेमाल की है, सेंट्रल रेलवे सर्वर में भी TLAB ही इस्तेमाल की है। नाम चेंज कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ कॉन्टेक्ट से नेम बदल सकते हैं। यहाँ पे हमने उसका कॉलिंग नंबर रखा है 60000। ठीक है, मतलब सेंट्रल रेलवे में SSC को कॉल अगर करनी है इस वाले सर्वर से, तो हमें 60000 इस्तेमाल करना है। ओके, तो यहाँ पे 60000 इस SSC का नंबर है। चलिए, नंबरिंग में डायल प्लान भी है और हमारा SSC अकाउंट भी है, तो अब क्यों ना इस फ़ोन को हम SSC के लिए इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे इसी अकाउंट को हम एडिट कर देते हैं और इसको बदल कर अब कर देते हैं SSE। कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखें, डोंट यूज स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स अनलेस एंटिल यू आर श्योर दैट कि आप दोनों जगह पे सेम इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो एक मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। So now my ID is also SSE, password ABCD, sorry, ABCDE। अगर आपको डाउट हो कि अगर पासवर्ड क्या है, अगर नहीं पता है, तो फिर से जाएं दोबारा और ship.cnf फाइल में यहाँ पेज डाउन बटन से नीचे की तरफ आए हैं, और यहाँ पे देखिए SSC में आपने पासवर्ड क्या यूज़ किया है। पासवर्ड है ABCDEF। ठीक है, यही पासवर्ड आपको फ़ोन पे देना है। तो श्योर कर लें, क्योंकि ये पासवर्ड कभी अगर गलत दे देते हैं तो वो फ़ोन रजिस्टर नहीं होता है। ओके, ABCDF दे दिया है, और यहाँ पे सर्वर का IP एड्रेस भी आपको पता करना है। लेट्स नो द सर्वर IP एड्रेस ऑल्सो। Ctrl+X, यहाँ पे टाइप करें IPADD, और इसका IP एड्रेस है 10.195.129.181। ठीक है, 10.195.129.181, 129.181। ओके, और इसको कर दीजिए ओके। यहाँ भी कर दें ओके। एक फोन अकाउंट तैयार हो गया है। राइट, so now my SSC account has been registered and it is now connected in Central Railway. ओके, तो एक फोन हमारा सेंट्रल रेलवे में है, एक फोन हमारी इस साउथ सेंट्रल रेलवे में है, और अब हम दोनों के बीच में STD कोड डायल करके कॉल करना चाहते हैं। तो चलिए डायल प्लान दिखा देते हैं आपको दोनों में। तो आई विल टेक यू टू द डायल प्लान फाइल extension.cunf। यहाँ पर भी हम दोनों को ओपन कर लेते हैं, यहाँ भी आपको बता देता हूँ मैं, extension.cunf फाइल। हो सकता है शायद हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ी हुई हो, लेकिन आप थोड़ा कंसंट्रेट करें कि एक ही फाइल को हम बार बार ओपन करते हैं और उसमें क्या क्या लिखते हैं, तो definitely will understand that ki why the file is getting opened again and again for certain reasons, for the change in the dial plan, or maybe something we need to check into it, right? तो यहाँ पर भी देखिए डायल प्लान है, यहाँ पर भी आगे चलते हैं।
पेज डाउन बटन से डायल प्लान के नीचे की तरफ, यस। तो दोनों सर्वर के सामने सामने है अभी। अब यहाँ पे हमने लोकल डायल प्लान ये लिखा हुआ था, जो कि हमारे लोकल अकाउंट को डायल करने के लिए थे। यहाँ पर भी डायल करने के लिए है लोकल अकाउंट। लेकिन एसटीडी डायल प्लान में दो सर्वर के बीच में जब हमें डायल करनी होती है, तब हम डायल प्लान में अंडरस्कोर साइन का इस्तेमाल करते हैं। So whatever lines which are written with this underscore sign indicates that the dial number is going outside the server. Okay? तो यहाँ पे अभी में सेंट्रल रेलवे से साउथ सेंट्रल और साउथ सेंट्रल से सेंट्रल की तरफ कॉल करनी है। दोनों के एसटीडी कोड के नंबर भी देखने हैं। तो सेंट्रल से हम कर रहे हैं अंडरस्कोर 070 एसटीडी कोड, और ये जो एक्स डिजिट है ये बताता है कि एक्स वेरिएबल वाले नंबर्स आप भेज सकते हैं। मतलब एक्स कैन बी 0 to 9 and dot indicates that any x after 070 can be dialed in that direction. ओके, तो अभी हमें फिलहाल करना है कि हमारी जो कॉल है वो एसटीआर में सीधे चली जाए। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल ये वाला डायल प्लान को मैं बंद कर रहा हूँ। थोड़ी मॉडिफिकेशन मुझे करनी दीजिए ब्रदर्स। गुड। तो डोंट गेट पैनिक दैट something which you are not able to see on this screen or that screen, it should not be like that. आ जाएगा आपको थोड़ी देर में। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने लाइनें क्यों बंद की थी। ये लाइन मुझे खुली रखनी है क्योंकि सेंट्रल रेलवे वांट टू कॉल टू साउथ सेंट्रल रेलवे विद द डायलिंग नंबर्स। साउथ सेंट्रल में डायलिंग नंबर क्या है ब्रदर्स? 8 की सीरीज के नंबर है 81, है ना? तो 81 सीरीज इसके नंबर है। चलो इसको भी इसको मैं बंद ही कर देता हूँ फिलहाल। अभी एक ही लाइन चालू रखते हैं। आई विल कीप दिस लाइन आल्सो क्लोज। और इंजन की लाइनें बंद है, एसटीआर की लाइन खाली चल रही है, 070 वाली लाइन खाली चलानी है। और ये 5 डिजिट की जो डायलिंग है इसको भी दोनों चालू रखनी है। मतलब हम एसटीआर में विद एसटीडी कोड और विदाउट एसटीडी कोड दोनों से डायलिंग कर सकते हैं। तो हमने एसटीआर को ये दे दिया है ऑप्शन कि हम एसटीडी कोड और विदाउट एसटीडी कोड दोनों से डायल कर पाएँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हम करते हैं एसटीडी कोड के साथ डायलिंग, और इसकी प्रायोरिटी कर देता हूँ मैं 1। ठीक है, थोड़े से मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं, आप लोग डरिएगा नहीं कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो मैं इसको फिर से दोबारा लिखने की कोशिश करूँ तो मैं फिर से दोबारा लिख देता हूँ। ओके, चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपके कन्फ्यूजन ना हो ये बंद और चालू करने की। तो मैं यहाँ पे सारे जो नंबरिंग प्लान है उसको डिलीट ही कर देता हूँ फिलहाल। तो 2 लाइनें हमें, राइट। चलिए अब एसटीडी कोड के लिए डायलिंग लिख रहे हैं x10 इक्वल टू ग्रेटर देन। यहाँ पे अंडर साइन का इस्तेमाल करना है, 070 का इस्तेमाल करना है तो करें। अभी अब एक्चुअली हम ये दिखाना चाहेंगे कि विदाउट एसटीडी कोड डायरेक्ट डायलिंग कैसे होती है। चलो तो डायरेक्ट डायलिंग कर लेते हैं। तो सेंट्रल रेलवे वांट टू कॉल टू साउथ सेंट्रल रेलवे, द कॉलिंग नंबर्स आर इन द सीरीज ऑफ 8 and the calling numbers are 5 digit, so we can put 8x dot comma, that means after 8 any x digit can be dialed, and with first priority they should be dialed to a account SIP with $X10। ठीक है, इसका मीनिंग मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। X10, और क्योंकि स्ट्रेट डायलिंग होनी है और किस तरफ जानी है, इट हैज़ टू गो टू एससीआर। तो इस लाइन का मीनिंग है कि अब हमारे सेंट्रल रेलवे से डायरेक्ट डायलिंग 8 डिजिट, जो 5 डिजिट की डायरेक्ट डायलिंग है वो साउथ सेंट्रल रेलवे सर्वर में सीधी चली जाएगी। यहाँ पे डायल सिप का मतलब है कि ऑल द सिप अकाउंट इन साउथ सेंट्रल रेलवे सर्वर should be dialed with these dial numbers if they are available as extension number in their server। का मीनिंग क्या है? डायल 8x dot digits to South Central Railway as a SIP account which are connected as extension in that server। तो ये लाइन आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है ऊपर वाली लाइनों से। यहाँ पे हमने पूरे 5 डिजिट जो है पूरे डिफाइन करे हैं। यहाँ पे हम पूरे एक क्लस्टर को, 8 की सीरीज के पूरे क्लस्टर को हम यहाँ पे एक ही लाइन में डिफाइन कर रहे हैं, अलग अलग नहीं। मतलब यहाँ पे 81001, 81002, 3, 4, 5 ऐसे करके 100 लाइनें नहीं लिखनी है। आप उसके बाद के जो वेरिएबल है, मतलब 8 कॉमन है, बाकी के वेरिएबल्स आप एक्स में लिख सकते हैं। तो एनी एक्स डिजिट आफ्टर 8 कैन बी डायल इन साउथ सेंट्रल रेलवे एज एन एक्सटेंशन which are defined as a SIP account in that area। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी है। इसी तरह से अब इस वाले सर्वर में भी चलते हैं ब्रदर्स, और यहाँ पर भी हम अपनी जो लाइन है इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। लेट मी डिलीट ऑल दिस।
राइट, यहाँ पर भी लिख देते हैं x10 इक्वल टू ग्रेटर देन अंडरस्कोर, और अब सेंट्रल रेलवे का नंबर है, एसटीडी कोड तो नहीं लगाना है और एसटीडी कोड नहीं लगाना है, लेकिन इसके पास में जो नंबर है उसकी सीरीज है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हम लोग डायल करेंगे 6x डॉट कॉमा 1 कॉमा, डायल करेंगे इनको इस तरफ सेंट्रल रेलवे की तरफ एज ए सिप अकाउंट, और सारे के सारे जो अकाउंट है वो एक्सटेंशन के रूप में डिफाइन है उस सेंट्रल रेलवे में, तो एट द रेट CR। गुड, अब ये दोनों लाइनों का मतलब समझ लीजिए, यह है ना, हाँ सॉरी, ग्रेटर देन अंडरस्कोर, ओके। तो आप देख लीजिए दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के सामने हैं, ये वाली लाइन से हम SCR को कॉल कर रहे हैं और इस वाली लाइन से हम सेंट्रल रेलवे को कॉल कर रहे हैं, 6 की सीरीज के नंबर, यहाँ पर 8 की सीरीज के नंबर, ठीक है। चलिए दोनों लाइनों को यहाँ पे सेव कर देते हैं, कंट्रोल O जो कि लाइन सेव करने के लिए, और कंट्रोल X से इस फाइल से बाहर एग्जिट करने के लिए। अभी हमारे सिप अकाउंट भी रेडी है, डायल प्लान भी रेडी है, और क्यों ना अब हम इसे रीलोड कर दें हमारे सर्वर में जाकर। तो पहले तो हमें जाना है S6RVV इस कमांड में जाते हुए, और यहाँ पे करना है SIP रीलोड और डायल प्लान रीलोड। राइट, अब ये दोनों चीजें हो गई, SIP रीलोड हो गई, डाउनलोड और डायल प्लान रीलोड हो गया। सिमिलरली इन दिस सर्वर also we have to do the same thing, कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X, फाइल को राइट आउट किया, एग्जिट किए, और अब यहाँ से S6RVV में जाकर इसको लोड करना है। तो ये थी S6RVV। सिमिलरली सिप रीलोड करें, SIP रीलोड, SIP रीलोड और डायल प्लान रीलोड, यह डायल प्लान रीलोड। अभी दोनों डायल प्लान और सिप कनेक्ट हो गए हैं। अब ये दोनों फ़ोन भी हमारे सामने ही है आपके। तो साउथ सेंट्रल में CST का नंबर था 81002, और यहाँ पर इस SSC का नंबर जो है वो है 60000। तो चलिए हम साउथ सेंट्रल से शुरू करते हैं कॉल सेंट्रल रेलवे की तरफ, और डायल करेंगे नंबर 60000, जो कि यहाँ के SSC का नंबर है, और कॉल यहाँ से चली और ये कॉल हमारी कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो नाउ SSC फ्रॉम साउथ सेंट्रल रेलवे इज कॉलिंग टू CST इन सेंट्रल रेलवे with this, sorry, CST is calling to SSC, ठीक। ये थी विदाउट STD कोड, ये विदाउट STD कोड डायलिंग थी। अब STD कोड डायलिंग भी बिल्कुल इसी तरह इसी जगह पे लिखेंगे हम, और देखेंगे कि हमारी डायलिंग विदाउट STD कोड और विद STD कोड दोनों में चलनी चाहिए। तो अभी हमने विदाउट STD कोड डायल करके देख ली है यहाँ पे कॉल। CST सर का नंबर है 81002, इसको भी कॉल करके देख लेते हैं। राइट, तो मतलब SSC is getting the call, has called our CST in South Central Railway, ठीक है, विदाउट STD कोड। यहाँ पे विदाउट STD कोड चल रही है कॉल। चलिए अब STD कोड के साथ में करवा देते हैं इसी कॉल को। यहाँ पे करते हैं एग्जिट। यहाँ तक समझ में आ गया ब्रदर सबको? एनीबडी कैन से यस? Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस बस मुझे यही पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज चाहिए ब्रदर आपकी तरफ से, और कुछ भी नहीं है। मैं जो दिखा रहा हूँ शायद वो एक बार में ना समझ में आए या एक या दो बार में, लेकिन आप जब इसको अगर प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी सी अगर आपको पहले से आइडिया हो कि डायलिंग नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट नंबरिंग यू आर यूजिंग एंड हाउ द स्कीम्स आर वर्किंग, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट। और क्योंकि ये जो है हमारे हार्डवेयर एक्सचेंजेस से बिल्कुल अलग है, यहाँ पे आपको हार्डवेयर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और डेफिनेटली एवरीथिंग इज इन दी सॉफ्टवेयर, सो वी हैव टू डेफिनेटली अंडरस्टैंड। ये लर्न कर ले तो आपका हो जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो ये एक्सटेंशन डॉट CNF फाइल में अब हम STD कोड के साथ में डायलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे STD कोड डायल करना है, x10 इक्वल टू ग्रेटर देन अंडरस्कोर, नाउ वी विल बी यूजिंग STD कोड ऑफ साउथ सेंट्रल वे दैट इज 070, और क्योंकि आप वहाँ पे 070 के बाद आप कोई भी x डिजिट अगर भेज दें तो वो सारे साउथ सेंट्रल वे में चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे 070x डॉट यूज कर रहे हैं। पहले हमने 8x डॉट यूज किया था साउथ सेंट्रल के लिए, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि नाउ वी हैव ए न्यू एरिया कोड अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ दैट एज ए प्रीफिक्स, so now we can use this 8 as a x, okay।
यहाँ पे कर देते हैं ऑप्शन नंबर 1 कॉमा, डायल करेंगे इनको भी बिल्कुल उसी तरह से, सिप स्लैश डॉलर, करली ब्रैकेट में एक्सटेंड लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, और ये स्मॉल लेटर यूज नहीं करना है। और इन नंबरों को जब आप भेज रहे हैं ब्रदर्स, तो या तो आप आउटगोइंग फिल्टर या फिर इनकमिंग फिल्टर दोनों चीजें कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किसी ने अगर 010x डॉट नंबर अगर हमारे सर्वर में भेजे साउथ सेंट्रल सर्वर में, तो यहाँ पर इस नंबर में से 3 डिजिट माइनस कर लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि इस सर्वर में और इस सर्वर में दोनों में, चलिए इसको भी मैं आप दिखा देता हूँ कंपैरिजन दिखाने के लिए, जस्ट फॉर द कंपैरिजन। ओके, अंडरस्टैंड कर लीजिए लाइन को मैं क्यों लिख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा अभी। राइट, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों जगह पे हमने उनके अपने अपने सर्वर में जो उनका एसटीडी कोड है उसको एसटीडी कोड करने का फिल्टर यहाँ पे लिख रखा हुआ है। दैट मीन्स एनीबडी डायलिंग इन साउथ सेंट्रल रेलवे विद एसटीडी कोड 070, then this particular number should go to a extension by removing the first 3 digit। यहाँ पर भी वही काम किया है। सेंट्रल वे में अगर कोई 010 नंबर करके आता है तो उसके नंबर में से 3 डिजिट माइनस करके इसे एक्सटेंशन की तरफ भेज दिया जाए, लोकल एक्सटेंशन की तरफ। दैट मीन्स दिस इज द लोकल लाइन और ए लोकल इनकमिंग लाइन फॉर साउथ सेंट्रल रेलवे, दिस इज द इनकमिंग लोकल लाइन फॉर साउथ सेंट्रल रेलवे। तो दोनों ने अपने अपने पास में क्या कर रखा है ब्रदर्स, इनकमिंग फिल्टर यूज कर लिया है। दैट मीन्स अगर दोनों पॉइंट टू पॉइंट कॉलिंग में अगर हैं और एसटीडी कोड यूज करना चाहते हैं तो उनके एसटीडी कोड निकालने की व्यवस्था हमने इनकमिंग डायरेक्शन में कर रखी है। इसका मतलब है कि अगर इनकमिंग में फिल्टर हो रहा है तो यहाँ पे आउटगोइंग में फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर हम कोलॉन 3 अगर लगा के भेजते हैं तो यहाँ पर ये नंबर सीधे इन लाइनों में आके मैच हो जाते हैं। मतलब इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, इनकमिंग डायरेक्शन के फिल्टर यूज करने हैं दोनों सर्वर में, और दोनों सॉरी ये निकाल देते हैं, और एक्सटेंड इक्वल टू ग्रेटर देन एक्सटेंड एट द रेट SCR। ठीक है, तो अभी देखिए SCR में हमने दोनों दोनों स्कीम के नंबर रख दिए हैं। राइट, तो SCR में अभी दोनों स्कीम के नंबर चलेंगे, 5 डिजिट नंबर डायरेक्ट डायलिंग, और विथ एसटीडी कोड भी नंबर चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों नंबर यहाँ पे चलने वाले हैं। और यहाँ पर भी हमने वही सेम चीज कर रखी है, यहाँ पर भी एक लाइन लिखनी है हमें। तो चलिए यहाँ पर भी वो लाइन लिख देते हैं, विथ एसटीडी कोड की लाइन, एक्सटेंड इक्वल टू ग्रेटर देन अंडरस्कोर, और मुंबई का नंबर है 010, सेंट्रल रेलवे का नंबर, सॉरी नॉट मुंबई का, एक्सटेंड डॉट कॉमा 1 कॉमा डायल SIP स्लैश डॉलर करली ब्रैकेट एक्सटेंड। और यहाँ पर भी फिल्टर यूज नहीं करना है क्योंकि हमने इनकमिंग में फिल्टर यूज कर लिया है, इसलिए अब सीधे सीधे हम 5 डिजिट डायलिंग और 8 डिजिट डायलिंग को सेंट्रल वे की तरफ और साउथ सेंट्रल वे की तरफ उनके इनकमिंग फिल्टर के साथ में यूज करेंगे। मतलब ये लाइन अपने खुद के फिल्टरिंग के लिए 3 डिजिट माइनस करने के लिए, और ये वाली जो लाइन है सेंट्रल रेलवे अपनी खुद की इनकमिंग फिल्टर करने के लिए यूज करेंगे। और ये दो जो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें सर्वर की बाहर जाने वाली आउटगोइंग लाइन है, जिसमें एक लाइन बिना एसटीडी कोड के और एक लाइन विद एसटीडी कोड के साथ है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने 3 लाइनें लिखी हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है दोनों? ओके, एनीबडी कैन से यस? राइट, चलिए तो इन दोनों को सेव कर लेते हैं। तो दोनों सर्वर में सेव करते हैं, कंट्रोल O से सेव करें, राइट आउट करें और एंटर कर दीजिए, और कंट्रोल X से बाहर आ जाएं। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी कर देते हैं, कंट्रोल O से राइट आउट और कंट्रोल X से बाहर। ठीक है, दोनों से हम फाइल बना के बाहर आ गए। नाउ दिस फाइल हैज टू बी अगेन रीलोडेड। तो यहाँ पे रिलोड करने के लिए हमको कमांड करनी होती है डायल प्लान रीलोड। यहाँ पे डायल प्लान रीलोड कर दिया। इस वाले सर्वर में भी सेम कमांड करेंगे, S6RBB और डायल प्लान रीलोड। ठीक है, अभी दोनों सर्वर में डायल प्लान भी रीलोड हो गए हैं, और अब कॉल चला के देखते हैं कि अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉल कर पा रहे हैं कि नहीं।
तो ये है साउथ सेंट्रल वे, ये सेंट्रल वे का नंबर, और यहाँ से हम अभी साउथ सेंट्रल में कॉल करना है 070, और यहाँ का CST का नंबर है 81002। कॉल देखते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सर्वर में, दोनों तरफ सर्वर में कॉल रिप्लाई हो रही है कि कहाँ पे कॉल बजी है, और यहाँ पे जब आप आंसर कर देते हैं तो एक जो है हमारा सेशन तैयार हुआ, और इसमें एक सिंपल ब्रिज की मदद से दो सर्वर के बीच दो यूजर ने कॉल कर लिया। ये हो गई विथ एसटीडी कोड। इसके पहले हम लोगों ने विदाउट एसटीडी कोड कॉल देख ली थी ना, तो अब ये विथ एसटीडी कोड की डायलिंग है। Right? बताएं बताएं, और किसी को अभी नहीं समझ आया तो फिर से एक बार और कर दें। 010 कॉल, इसको भी कॉल करके देख लेते हैं 010 की कॉल वहां जा रही है कि नहीं। उनकी कॉल का नंबर है 060 राइट। ये कॉल कनेक्ट हो रही है, मतलब अब दोनों सर्वर के बीच में विदाउट एसटीडी कोड और विद एसटीडी कोड दोनों कॉल चल रही हैं। ओके गुड। तो ये थी हमारी सेंट्रल मेश ट्रंकिंग वाली लाइन जो पॉइंट टू पॉइंट चलने वाली थी। नाउ वी विल ट्राई टू ब्रिंग आवर एनजीएन सर्वर इन बिटवीन। आपकी क्लास अभी और 15 मिनट है ना ब्रदर? राइट, ओके, अनदर 15 मिनट्स आर देयर, so in this 15 मिनट ओनली हम लोग कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब हम लेके आ रहे हैं सर्वर बीच में, एनजीएन सर्वर को। तो अब हमारे पास में एनजीएन सर्वर के दो नेबर हैं, एक नेबर है सेंट्रल रेलवे और दूसरा नेबर है साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। ये दोनों नेबर हैं इस एनजीएन सर्वर के। तो अब ये वाली कॉल जो है एनजीएन सर्वर से चलनी है, मतलब इस सर्वर से कॉल जानी है, ठीक। तो हमने पहले एक टाइल प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं पॉइंट टू पॉइंट, इस वाले सर्वर से भी कॉल जाने के लिए अभी हमें कॉल बनानी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग एनजीएन सर्वर में क्या तैयारी करनी पड़ेगी उसको ओपन करते हैं। तो लॉग इन इनटू एनजीएन सर्वर, और यहाँ पर ऑलरेडी मैं कॉन्फ़िगर बना चुका हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे कौन सी फाइल अटेंड करनी है अब अपने को, पहले अकाउंट फाइल, फाइल का नाम nano-sip.cunf, और यहाँ पर इस फाइल में क्योंकि एनजीएन के दो नेबर हैं, एक है सेंट्रल रेलवे और एक है एससीआर, तो इन दोनों के अकाउंट यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। इसमें हमने कोई यूजर क्रिएट नहीं किया है, कोई एसएससी, डीएसटी, जीएम, ये सिर्फ एनजीएन सर्वर है, तो एनजीएन सर्वर में सिर्फ इनके एक्सचेंज के अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। तो एनजीएन सर्वर डजंट होस्ट एनी सब्सक्राइबर्स, उसके उसमें कोई यूजर्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक कंप्लीट एक्सचेंज को होस्ट करता है। मान लीजिए कि बोले कि इरिसेट के कितने जितने भी नंबर हैं उनको कॉल करने के लिए एनजीएन सिर्फ इरिसेट के अकाउंट बनाएगा, मतलब इरिसेट का एक अकाउंट रहेगा, इरिसेट में 100 नंबर हैं तो 100 नंबर के लिए अकाउंट नहीं बनेंगे। इसी तरह से हमने एनजीएन सर्वर में सेंट्रल वे का अकाउंट बनाया है। सेंट्रल वे में 1, 2, 4, 10, 50, 100 यूजर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी यूजर्स के लिए हमने एक रिप्रेजेंटेटिव रखा है जिसका नाम है सेंट्रल वे का सर्वर। तो एक अकाउंट, हाँ आई गॉट इट, थैंक यू, एक नाम रखा है सेंट्रल वे, इसी एनजीएन का दूसरा और एक नेबर है जिसका नाम है एसटीआर। तो ये दो नेबर हैं। तो एनजीएन में क्या होता है, जितने भी नेबरिंग एक्सचेंजेस होते हैं सभी एक्सचेंजेस के अकाउंट यहाँ पे बनाए जाते हैं, जोन के, डिवीजन के, जो भी अन्य उनसे जुड़ते हैं, जो भी डायरेक्टली एनजीएन से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको अपने लिए एक अकाउंट एनजीएन सर्वर में बनवाना पड़ता है। तो दैट मीन्स एनजीएन क्रिएट्स वन अकाउंट दोज हु वांट टू कनेक्ट विद देम। ओके, तो हमने अपने एक सेंट्रल वे को और एक साउथ सेंट्रल वे को, दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दोनों अकाउंट बना दिए। और क्योंकि अब एनजीएन हमारा नेबर है तो हमें अपने लिए एनजीएन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो हमें अपने अपने सर्वर में भी एनजीएन का अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे मत ना यार, क्यों ऐसा करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। नहीं मतलब उठाओ, उठाना नहीं, उठाना नहीं, राइट। तो यहाँ पे पहले sip.cunf फाइल में जाएं, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्योंकि बनाया हुआ है इसलिए आपको मैं यहाँ sip.cunf में बता देता हूँ आपको एक अकाउंट। आईपी नेट, वो बाहर से नेटवर्क से कॉल आ गई, राइट। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने बनाया हुआ था एससीआर का अकाउंट,
जो कि हमारा डायरेक्ट नेबर था। अब हमारा एक नेबर और आ गया, इसका नाम है एनजीएन। इस एनजीएन के लिए भी हमने यहाँ पे एक अकाउंट बना दिया है। तो दो अकाउंट बने हैं, एक एनजीएन का अकाउंट और एक साउथ सेंट्रल रेलवे का अकाउंट। सिमिलरली इन दिस सर्वर ऑल्सो वी हैव मेड द अकाउंट फॉर एनजीएन। इसमें भी एनजीएन का अकाउंट है। यहाँ पर भी अकाउंट है, राइट। तो दोनों जगह पे हमने दोनों नेबरिंग सर्वर में एनजीएन का अकाउंट बना दिया है, उसका आईपी एड्रेस डाल दिया है, उसके क्रेडेंशियल्स लिख के दोनों अकाउंट कर दिए हैं। तो नाउ दीज टू सर्वर्स आर नाउ इंडिकेटिंग दैट दे कैन बी कनेक्टेड टू एनजीएन सर्वर। चलिए, तो अब एनजीएन सर्वर बन गया। अब इसके डायल प्लान लिख देते हैं कि एनजीएन सर्वर की तरफ नंबर कैसे जाएंगे। ओके, so now get back and go to extension.cunf फाइल। ये डायलिंग फाइल है हमारी, डायल प्लान की फाइल। इसमें अब डायलिंग प्लान लिखना है एनजीएन की तरफ जाने वाला। एनजीएन में आपने देखा ना, हमने दोनों सर्वर के ये बनाए हैं, अकाउंट बनाए हैं एनजीएन सर्वर में। अभी एनजीएन सर्वर इज कनेक्टेड टू दीज टू नेबर्स एंड दीज टू आर कनेक्टेड टू एनजीएन विद देयर रिस्पेक्टिव एनजीएन अकाउंट। ठीक है, तीनों में आपस में एक दूसरे के अकाउंट बना दिए हमने। तीनों अब एक दूसरे को अपने नेबर के रूप में जान रहे हैं। गुड, अंडरस्टूड ही? यहाँ तक सबको ठीक है? Yes, sir. राइट। अब ये दोनों में हमको डायल प्लान भी बनाने हैं, तो यहाँ से भी एग्जिट कर जाते हैं और नाउ वी गो टू extension.cunf और हमारी जो आखिरी की लाइन है वहाँ तक चलता है, राइट। और इसमें भी चलते हैं क्योंकि इसमें भी बनाने हैं हमको। तो यहाँ पर भी हम Ctrl+X से बाहर आए। यहाँ इसमें भी extension.cunf में आ जाए, राइट। अब तीनों के डायल प्लान हमारे सामने हैं। अब तीनों हमें क्या क्या लिखना है उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ यहाँ। तो सबसे पहले तो हम अपने इस वाले सर्वर में चलते हैं। नाउ CR वांट टू कॉल टू SCR। तो ये पहली लाइन में विदाउट एसटीडी कोड और विद एसटीडी कोड की प्रायोरिटी के नंबर SCR में सीधे जा रहे हैं। अब हमें लिखनी है एक लाइन जिससे कि ये एनजीएन में भी जाने लगे। तो एनजीएन में जाना है। अब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि आपकी कॉल पहले एनजीएन में जाए, और अगर एनजीएन फेल हो तो आपकी कॉल जो है डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चली जाए। मतलब अगर एनजीएन से जानी है तो यहाँ पे पहले कॉल एनजीएन में आए फिर SCR में जाए। लेकिन अगर आपका ये इंजन अगर फेल हो जाता है, अगर ये डाउन हो जाता है, तो आपकी कॉल फिर कहाँ चलनी चाहिए? इन दोनों सर्वर में डायरेक्टली चलनी चाहिए। तो ये लाइन अभी जो है डायरेक्ट वाली लाइन है, जो पहले पॉइंट टू पॉइंट चल रही थी। इस लाइन को अभी हमें मॉडिफाई करना है, थोड़ी सी मॉडिफाई। तो देखिए क्या मॉडिफाई करेंगे इसमें। इसमें लिखते हैं हम पहले तो डायल प्लान एक्सटेंड इक्वल टू ग्रेटर देन अंडरस्कोर साइन। और यहाँ पे अभी क्योंकि एनजीएन हमारे पास में जो है ब्रदर्स, वो ओनली 8 डिजिट डायलिंग करवाता है। मतलब 3 डिजिट माइनस करना है, 5 डिजिट आगे फॉरवर्ड करना है, ये उनकी स्कीम है। वो चाहे तो कितने भी नंबर आप भेजें उतने नंबर आगे फॉरवर्ड करने की क्षमता रखते हैं। इफ यू सेंड 3 डिजिट it will send 3 digit also outside, no need. But as far as our uniform numbering plan is concerned, STD area code is concerned 01020099, that scheme we want to implement on NGN server for our purpose। तो एनजीएन को हमसे 8 डिजिट लेना, 5 डिजिट माइनस करना, ये हमने उनको स्कीम बताई है। दे आर नॉट हैविंग एनी कॉम्प्लेक्शन और एनी compatibility issues that they cannot send 3 digit or 5 digit. They can send any number you send to them, they will forward it to other destination. But as far as we require, we need that our STD area code should be filtered and then 5 digit number should be transferred to the concerned exchange. So that scheme we have told them to implement and they are implementing it. So as here also same thing, we want to call to 070 some x dot digit. Now we have to see the priority. तो यहाँ पे आपने क्या दिया है? Same number I am sending in priority 1 to SCR directly, that means इस सर्वर में सीधे पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर हमें एनजीएन सर्वर के साथ में पहुंचाना है तो हमें इसकी प्रायोरिटी भी यहाँ पे बतानी है। तो मैंने पहले प्रायोरिटी रखी है सेंट्रल में डायरेक्ट SCR में डायरेक्ट जाने के लिए, और दूसरी प्रायोरिटी में हम प्रायोरिटी दे रहे हैं एनजीएन सर्वर में जाने के लिए। तो ये जो सेकंड लाइन है ब्रदर, ये लाइन हमारे इस एनजीएन सर्वर में आने के लिए लिख रहे हैं। तो अभी आपको प्रायोरिटी बतानी है कि कौन सी वाली प्रायोरिटी पहले या कौन सी वाली बाद में। तो मैं पहले आपको लिख देता हूँ और फिर बाद में 1 मिनट में आपको दिखा दूँ। SIP/$ करली ब्रैकेट एक्सटेंड करली ब्रैकेट क्लोज, और इसको जाना है एनजीएन में।
ठीक है, अभी देखिए दोनों लाइनों में पहली लाइन आपने दी है कि डायरेक्ट डायलिंग हो जाए हमारी साउथ सेंट्रल में, और दूसरी प्रायोरिटी आपने दिखी है कि सेम नंबर अगर पहली वाली प्रायोरिटी बंद हो जाए तो दूसरी प्रायोरिटी में ये एनजीएन पर जाए। लेकिन अब हमें प्रायोरिटी रिवर्स करनी है, हमें करना है कि पहली प्रायोरिटी में हमारी कॉल एनजीएन से जाए, अगर एनजीएन फेल हो जाए तो हमारी कॉल फिर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट में साउथ सेंट्रल रेलवे को सीधी चली जाए। तो यहाँ पे अभी दोनों प्रायोरिटी को हमें एडिट करना पड़ेगा। तो आई विल यूज सेकेंड प्रायोरिटी फॉर this number and I will use priority 1 for this line। तो अब देखिए प्रायोरिटी मैंने चेंज कर दी है, ये नंबर डायल होगा एसटीडी के साथ पहली प्रायोरिटी में एनजीएन की तरफ। इफ एनजीएन फेल्स देन द कॉल गोज इन सेकंड प्रायोरिटी टू साउथ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो चलिए इसको कर देते हैं सेव, कंट्रोल ओ से, और एंटर कर देते हैं। ठीक है, ध्यान में आ गई ये दोनों लाइनों का मतलब। अभी अब ये प्रायोरिटी हमने बदल दी है, पहली प्रायोरिटी में एनजीएन को कॉल जाए और अगर ना चले तो फिर प्रायोरिटी सेकंड वाली काम करे। चलो यहाँ पर भी वही काम कर देते हैं। तो कमिंग इनटू दिस सर्वर, गो टू दिस लाइन एंड राइट डाउन द डायल प्लान x10 इक्वल टू ग्रेटर देन, और यहाँ पे हमारे कॉलिंग नंबर है, सॉरी ये इंजन का, अभी इंजन में नहीं करते हैं, इसमें कर देते हैं, इसमें करना है। तो इसमें हमारे नंबर जा रहे हैं 010 पहली प्रायोरिटी में सेंट्रल में पॉइंट टू पॉइंट, इसको हमें करना है इंजन की तरफ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ठीक है, पहले लाइन लिख देते हैं x10 इक्वल टू ग्रेटर देन, और यहाँ पे आता है अंडरस्कोर 010 x डॉट कॉमा 1 कॉमा डायल स्लैश डॉलर करली ब्रैकेट x10 और @NGN सर्वर का नाम। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें यहाँ पे देखिए, ये दोनों लाइनें इनकी आउटगोइंग लाइन है जिसमें पहली प्रायोरिटी इंजन की तरफ है। यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे अभी हमको चेंज करनी पड़ेगी, इंजन की प्रायोरिटी 1 रखनी है और नॉर्मल जो पॉइंट टू पॉइंट कॉलिंग है उसकी प्रायोरिटी यहाँ पे 2 रखनी है। तो चलिए इसको मैं प्रायोरिटी 2 कर देता हूँ। अब देखिए ये प्रायोरिटी 2 कर दी, ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो ये दो लाइनें अब आउटगोइंग लाइन है हमारे इस सर्वर से जो कि एसटीडी कोड के साथ में डायलिंग कर रही है। एनी डाउट? पहली प्रायोरिटी हमने इंजन को दे दी है, पहली प्रायोरिटी इंजन को दे दी है, मतलब अब इंजन में कॉल आने के लिए हमें इंजन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि दोनों सर्वर से जब कॉल हमारे पास आए तो कॉल सेंट्रल वे से आए तो उसको सेंट्रल वे के साउथ सेंट्रल में भेजना, और अगर साउथ सेंट्रल से आए तो उसको सेंट्रल रेलवे में भेजना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये दोनों लाइनें लिख देते हैं, ये पूरी लाइनें मैं मिटा दूँ एक बार। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल जस्ट रिमूव ऑल द लाइन्स, फिर से एक बार लिख देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे x10 इक्वल टू ग्रेटर देन, और क्योंकि हम यहाँ से नंबर्स बाहर की तरफ भेज रहे हैं तो एक नंबर है सेंट्रल रेलवे की तरफ जाने वाला 010 x डॉट, और ये जाने चाहिए पहली प्रायोरिटी में ही, और जाएंगे ये डायल करते हुए सिप अकाउंट की तरफ एज ए एक्सटेंशन। ठीक है, और अब क्योंकि यहाँ पे हमने इनकमिंग फिल्टर यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर एसटीडी कोड को फिल्टर करने की ऑप्शन नहीं करना है। अगर कर भी दी तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, :3 अगर लिख दें तो पहले 3 डिजिट इसमें से माइनस होंगे, 010 माइनस होगा, और बाकी के बचे हुए x डिजिट जो भेजे जाएंगे वो कहाँ पर भेजे जाएंगे अपना, एस कहाँ पर भेजना है, सीआर में, है ना, सेंट्रल रेलवे सर्वर में भेजना है ना। तो एक लाइन हमने एनजीएन से सेंट्रल रेलवे के लिए लिख दी है, अब इसी एनजीएन से एक लाइन हमको साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ भी लिखनी है, इस तरफ भी नंबर जाने हैं। तो यहाँ पर और एक लाइन लिखते हैं x10 इक्वल टू ग्रेटर देन अंडरस्कोर साउथ सेंट्रल में जाने वाले नंबर 070 एसटीडी कोड के साथ जाना है, इसकी प्रायोरिटी 1 है, और इनको भी डायल करें एज एन एक्सटेंशन कर सिप स्लैश डॉलर 10
और एक्सटेंड को क्लोज करने से पहले कोलोन लगा देते हैं, 3 डिजिट्स में भी माइनस होने हैं। ऐसी जो है सभी एसटीडी कोड एक साथ लिखे जाते हैं यहाँ पर। सर एंजिन सर्वर में 90 लाइंस लिखी जाएगी, 010 की एक लाइन, 011, 012, 013 से लेके 099 तक के सारे नंबर्स की फिल्टरिंग इंजन करने के लिए पूरे सर्वर्स के लिए डायल प्लान यहाँ पर लिखेगा। हम यहाँ पे सिर्फ 2 सर्वर यूज कर रहे हैं, एक सेंट्रल रेलवे का और एक साउथ सेंट्रल रेलवे का, इसलिए 2 ही सर्वर के नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन इन एक्चुअल फील्ड यानी एक्चुअल प्रैक्टिकली वहाँ पे 010 से लेके 099 तक के सारे एसटीडी कोड फिल्टर करने के लिए लाइनें लिखी जाती हैं, और वो तीनों लाइनों में फिल्टर करने का ऑप्शन यहाँ पे कोलोन 3 इस तरह से दिया जाता है। यानी उनका सर्वर अगर एस्ट्रिक्स नहीं है तो उसमें जो भी ऑप्शन होती हो, लेकिन डायलिंग प्लान बिल्कुल यही लिखा जाता है कि आए हुए 8 डिजिट में से पहले 3 डिजिट माइनस करो और बाकी के 5 डिजिट उनके रिस्पेक्टिव सर्वर्स को भेज दिए जाएं। तो यही ऑप्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। और अब यहाँ पे हमारा जो नंबर है SCR को जाएगा, तो ये हो गया SCR का नंबर। तो एक्सटेंशन 010 से आए हुए नंबर सेंट्रल रेलवे में जाएंगे और एक्सटेंशन 070 से आए हुए नंबर साउथ सेंट्रल में जाएंगे। ये स्कीम हमने एनजीएन में इम्प्लीमेंट कर दी है। ओके, चलिए इसको हम कर देते हैं कंट्रोल से सेव और एंटर करते हैं। यहाँ से बाहर आते हैं और इनको सभी को लोड भी करना है। तो अभी यहाँ पे सभी को लोड करने के लिए जाना है, सभी को लोड कर देते हैं। डायल प्लान रीलोड और सिप रीलोड दोनों कर देते हैं, सिप लोड भी कर देते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे कि हमने कोई चीज़ की थी या नहीं की थी। यहाँ पर भी सिमिलरली वही करते हैं। नाउ वी कैन सेव देम, कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X, और इनको भी रिलोड कर दीजिए। यहाँ पर भी डायल प्लान रिलोड करना है या सिप लोड, इसको भी सिप लोड भी कर दीजिए, सिप रीलोड। इस वाले सर्वे में भी काम कर देते हैं हम लोग। कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X, X6 और डायल प्लान रिलोड और सिप रिलोड भी कर दीजिए। तो सभी में हमने डायल प्लान और सिप रिलोड को एक बार दोबारा से रिलोड कर दिया। अभी सभी के सभी सर्वर्स अपनी सिप कॉन्फ़िगरेशन और डायल प्लान कॉन्फ़िगरेशन के साथ रेडी हैं। और अब हम देखें कि अब हमारी कॉल एनजीएन सर्वर से पहली प्रायोरिटी में इन 2 फ़ोन से जानी चाहिए। तो अभी हमारा एक फ़ोन है एसएससी का जो कि सेंट्रल रेलवे में है, और एक फ़ोन जो कि हमारे सीएसटी सर का है वो साउथ सेंट्रल रेलवे में है। तो यहाँ से हम साउथ सेंट्रल रेलवे का एसटीडी कोड पहले डायल करें 070, और इनका जो कॉलिंग नंबर है उसका नंबर है 81002। इसको अगर डायल करें तो अब हमारी कॉल सीएसटी सर के पास में पहुंच गई, लेकिन गई कहाँ से है? इस सर्वर से गई है। तो हमारे इंजन सर्वर हैज कम इनटू द पिक्चर, he has taken care that the STD code has been removed and the call has been sent to South Central Railway। ठीक है, अगर आपकी कॉल यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुई होती तो हम कहते कि हमारी कॉल इंजन सर्वर में नहीं जा रही है। बट उसी तरह से यहाँ से भी आप करके देख सकते हैं 010 और यहाँ का नंबर है 60000। नाउ SSC इज कॉलिंग टू CST साउथ सेंट्रल रेलवे। सॉरी, वेट, क्या हुआ? एक मिनट, यहाँ से ये था CST का सेंट्रल वे ना, यहाँ से 010 यहाँ तो कॉल कर दी थी ना हमने। सेंट्रल वे का नंबर है 6 हाँ, सेंट्रल का 6 है, यस। तो यहाँ से करेंगे हम 010 60000। यस, ये आ गई कॉल। ओके, तो ये थी हमारे दोनों सर्वर में कॉलिंग, जो कि हमने सेंट्रलाइज सर्वर से करके देखी और मेश ट्रंकिंग भी करके देख ली है। ठीक है, और अगर इंजन अब फेल हो जाए, चलो मैं अभी इंजन सर्वर को बंद कर देता हूँ फिलहाल, ये मैंने क्लोज कर दी और ये मैंने पावर ऑफ कर दिया है, मेरे इंजन सर्वर इज नाउ डाउन। अब मेरे ये दोनों फोन की स्टेटस क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉल करके देख लीजिए। SCR नाउ वांट्स टू कॉल टू सेंट्रल वे 010, और सेंट्रल वे का नंबर है हमारे पास में, उनके नंबर में 60000। क्या हुआ? इंजन बंद हुआ है, पहली प्रायोरिटी बंद हो गई, दूसरी प्रायोरिटी
इसका नंबर था 070810002। Yeah, now connected. Oh, server थोड़ा reset होने में time लगा. So now they have been connected. So now you can say that now engine server is down. Still my calls are running because of the second priority is still working. So एक जो second priority में जो call थी वो हमारी अभी समय में काम कर रही है. तो engine server अभी down है और engine server अभी नहीं है, फिर भी हमारी दोनों calls जो है point to point में second priority में with HTTP code चलने लगेगी. ओके इसमें कोई डाउट? अगर कुछ नहीं है तो अभी हम लोग और इसके बाद वाली और 2 घंटे हैं, 1 घंटा और मिलेगा हमें अभी, तो उस समय में हम लोग फिर से देखेंगे. ठीक है, बताएं. यस, सर उसमें कॉन्फ्रेंस कॉल भी अवेलेबल हो सकता है. कॉन्फ्रेंसिंग बताएं फिर से बोलिए, मुझे आवाज नहीं आई थी ठीक से. कॉन्फ्रेंसिंग की बात. कॉन्फ्रेंस कॉल. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. यस, अभी क्योंकि हमारे पास में अगर हम डायल प्लान लिख देते हैं कि सारे सर्वर्स अगर एक सेंट्रलाइज सर्वर्स के पास या किसी भी सर्वर में एक कॉन्फ्रेंस रूम अगर हम बना दें तो सभी लोग उस कॉन्फ्रेंस रूम का नंबर डायल करके उस कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं. मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कैन बी क्रिएटेड इन एनी ऑफ द सर्वर एंड एनीवन कैन आल्सो यूज दैट कॉन्फ्रेंस पोर्ट. इसमें अपने एक्सचेंज के अपने सर्वर में कॉन्फ्रेंस बनाना जरूरी नहीं है. आप सेंट्रलाइज लोकेशन में किसी भी एक सर्वर को कह दें कि भाई आप जो है वहाँ पे सर्वर का कॉन्फ्रेंस मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बना दीजिए, तो वो एक जगह पे मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बना देंगे और वो जो कॉन्फ्रेंस का जो कोड है वो सभी लोग शेयर कर लेंगे और सभी लोग उस कॉन्फ्रेंस कोड को अपने यहाँ से आउटगोइंग में प्लान कर देंगे और वो उस लोकेशन से वो जो है कॉन्फ्रेंसिंग में घुस सकते हैं. So multi-party conference में यहाँ पे maximum number of participant is unlimited. You can assign maximum numbers to 100, 200, 300, any numbers you can assign. तो एक conference bridge फाइल होती है हमारे सर्वर में, वो conference bridge फाइल में ये सभी चीजें बनानी है. तो कॉन्फ्रेंसिंग आवाज नहीं आई ब्रदर, ठीक से फिर से बोलिए तो. नहीं आवाज नहीं आ रही. हेलो. और कोई सुन, हाँ और कोई सुन पाए उनकी, अगर बताएं क्या बताया उन्होंने. हेलो. हाँ बोलिए. वन टाइम में अपने को सर्वर पे कॉन्फ्रेंस बनाना पड़ेगा या एवरी टाइम बनाना पड़ेगा? नहीं ओनली वन टाइम आपका एक कॉन्फ्रेंस फाइल होगी. उस कॉन्फ्रेंस फाइल में हम क्या करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस बीच का एक क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पहले से बना के रख देते हैं और एक डायल प्लान आपको सिर्फ चेंज करना होता है कि कितने डायल नंबर्स आपको उस कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचने के लिए चाहिए. तो मतलब डिफॉल्ट कॉन्फ्रेंस ब्रिज मतलब ये होती है कि सिकंदराबाद स्टेशन है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो आपके पास वहाँ पे एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट है. ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आप एंट्री पॉइंट से आपको प्लेटफॉर्म 1 या 2 या 3 या 4 पे या 10 प्लेटफॉर्म है तो आपको सेम एंट्रेंस से जाना है. तो एंट्रेंस विल बी कॉमन बट you can select that I want to go to platform 1 or platform 2 or platform 3. Similarly, in our servers we create a conference bridge room for all the conferences to happen inside. And inside that conference, we can assign that I want to use the conference room number 1 or conference number 2 or 3 by their respective dial numbers. So if I assign 100 for conference 1, I can assign 1002 for conference 2, conference 3. So in the dial plan, we have to mention that 100 can be in conference 1 or conference 2 or conference 3. Default room is conference room only. But inside that conference bridge file we can create different dial numbers with their respective room numbers. ठीक है, ये एक्चुअली अभी इसमें मैं अभी यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी ऐसे अपना टाइम भी हो चुका है. लेकिन अगर आफ्टरनून में होगा तो मैं आपको एक कॉन्फ्रेंस फाइल कॉन्फ़िगर करके बता दूंगा हाउ टू पार्टिसिपेट. दीस टू पार्टिसिपेंट कैन पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस. ठीक है. थैंक यू. हाँ, with these two users only we'll see that the conference is working. Good. हेलो सर. हाँ जी. सर एक केस तो आपने दिखाया कि सेंट्रल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे के बीच में आपने बिना एसटीडी के भी कॉल कराया, जी. तो वो कैसे पॉसिबल है? क्या वो अगर ऐसे पॉसिबल है तो फिर एसटीडी कोड की जरूरत ही क्या है?
नहीं, एसटीडी कोड हमने जो है हमारे एरिया कोड को डिफाइन करने के लिए लिया। अगर हम डायरेक्ट डायलिंग 5 डिजिट की सभी जगह करते हैं तो हमारी जो नंबर सीरीज है उसमें ये सीरीज रिपीट हो सकती है। सेंट्रल रेलवे का आल्सो कैन यूज 8, साउथ सेंट्रल आल्सो कैन यूज 8। so to differentiate the 5 digit numbers from one area to another area, we are prefixing them with their STD codes, that is the area code. That area code we have defined in 010 to 099. These 3 digits are to be used as a area code. Area code can be just like our BSNL. So Just that like is our fine, BSNL. but then the direct call should not happen. No, no, no. What I'm telling is you can send any digits. You can send 2 digit number, 3 digit number, single digit number, or 8 digit number also between the servers. It is not compulsory that it should be 5 digit only or with STD only. The STD, it is not the STD code. Actually, it is the area code which we are defining in some numerics. We have to select the numerics for defining the area code. We have decided that our area code will be 3 digit and we'll be using 0 as the first digit, and after that we'll be following it by 010 to 099. That means 10 to 99 will be my area code prefixing with 0. That means my decision is that I am taking 010 to 099 as my area code. BSNL has taken 200 to 299 as a area code. I may take 999 as a area code. No तो problem. एरिया कोड तो ठीक है, डिफाइन हो गया, लेकिन आपने डायरेक्ट कॉलिंग भी कराया ना उसका, बिना एरिया हाँ, कोड को डाले, और हाँ साथ में जी, एरिया कोड के साथ भी कराया कॉलिंग आपने। हाँ, हाँ। तो जब ये मैंने बिना एरिया कोड के साथ अगर कॉलिंग पॉसिबल है तो एरिया कोड की जरूरत ही क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि एरिया कोड अगर समझो आपके उसमें एरिया कम है तो आपके उसमें नंबर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन अगर आप उसमें एरिया ज्यादा हो जाए तो आप हर एक एरिया को कितने नंबरों से डिफाइन कर पाएंगे? अगर 9 एरिया है तो आप 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर दे चुके हैं, इसका मतलब तो नाउ 1 कैन अच्छा, नॉट बी यूज इन ओके, अदर एरिया, 2 कैन नॉट अच्छा, बी अच्छा। यूज इन अदर एरिया, इफ इट इज यूज इन वन एरिया इट कैन नॉट बी यूज इन अदर एरिया, और तो अदरवाइज यू हैव टू, यस देन यू हैव टू डिफाइन द सेकंड डिजिट एज अ वेरिएशन। अगर अच्छा, आपने दो एरिया में, हाँ, कैपेसिटी नॉर्मल, कैपेसिटी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, रिफ्लेक्शन। exactly sir, because we are only concerned with 1 to 9 numbers only, and if we are using the same numbering plan in every area then we cannot have larger numbers, so to But differentiate. with limited हाँ, numbers we can do direct dialing बिल्कुल also. सर, बिल्कुल, yes sir, CUG की Okay. numbering plans are in the same way that you can be using 6 as a common in all the divisions and zone for your railway. 6 will be common, then your zone can take 60, another division can take 61, another division can take 62, 63, 64. Like this you can define 60 to 69 numbers to every division in your zone. That can be Okay. a CUG number. So 6 is common Okay, in sir. all, and the second digit is varying. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you. Uh, Thank you. okay, so in the Thank afternoon you. we'll see, I will show you that if it is possible I will show you the conferencing between these two subscribers participating in the conference bridge. Similarly, you can use multiple users like 50 or 100 users of any server can participate in that. Okay.